Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है, पहना हुआ है, मैंने बोल दिया। नहीं पहनी भी मैंने, ये शर्ट है जिसके ऊपर थोड़ा सा पसीना आ गया। पसीना तो आ गया, लेकिन मुझे सबसे पहले बात ये बताओ, ये ऑरेंज है या पिंक है? इस वक्त से ये लड़ाई छिड़ गई है क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये ऑरेंज है, ये कह रहे हैं ये पिंक है। आई थिंक इट्स सैमन, नहीं, बट यू नो आई it's कैन not सी द ऑरेंज शेड इन इट एज वेल। अलीजा भी यहाँ पे बैठी हुई है, हाँ। उससे भी पूछ लेते आ हैं जाओ क्या- आ जाओ अलीजा, क्या है ये कलर? रिटर्न ऑफ अलीजा करा लें पॉडकास्ट पे। आज इसका इंटरव्यू था। यू माइट बी लुकिंग एट द न्यू फेस ऑफ लेक शोर सिटी इस्लामाबाद। Yeah. Hi guys. Is it orange I or pink? don't have a place to. This is orange. Orange. Salmon. इसने थोड़ा सा अपनी statement change की है. Oh, in it. He said that it's Baby pink. baby pink before, and now he's saying salmon. Yeah. Salmon is closer to orange. Yeah, So this is orange. you have he's changed his statement, Achha, and also go on. guys, I would just like to tell you they seem like really good guys, but they're not. Okay. Because Saad he told me कि बहराम को कुछ ऐसा बोलना कि ये बुरा लगे, और फिर इन्होंने मेरे ऊपर इतनी सारी बातें बोल दी। खुद ही कह रही थी कि हेरा मानी के बारे में बहुत कुछ पता है। मानी के बारे में बोला है, और हसन के बाल and all of that, so this is not a safe space. Do not share information, and also this mug is amazing. Guys, go get yours. Hashtag fix Today. yourself. And I'm Hashtag gonna go and leave fix the boys yourselves. to do what they do, but yeah, don't trust them. Okay, Bye. bye sweetheart. अच्छा, चलो जी, हाँ। now that we've gotten that out of the way, सादी। क्रिकेट पे आ जाते हैं यार। हाँ जी, अच्छा तो दो basically, मैचेस हुए हैं। yeah, पहला वाला था लाहौर वर्सेस मुल्तान, yes, the Punjab derby, यस। दूसरा पेशावर वर्सेस कोयटा। और दोनों लाहौर में थे। और रिजल्ट्स और गेम एनालिसिस पे तो आएंगे थोड़ी देर में यार। शुरू क्राउड से करें थोड़ा। हाँ, आई वांट टू काइंड ऑफ एड्रेस द क्राउड सिचुएशन। लुक, मजे नहीं आए। Gazaffers जो है, it's refurbished, new and improved, right? Everything looks pretty. And लाहौर के अंदर उस तरह की ख्वारी नहीं होती आम आवाम को. You have to walk a bit, but it's generally smooth sailing. ठीक है? It was a healthy crowd for the Punjab derby. लाहौर और मुल्तान वाले मैच. हाँ, healthy था। Healthy Full था. नहीं था। नहीं, it wasn't a full house, and when Lahore is playing, you expect full houses. We've seen full houses in the past, yeah. right? So not particularly impressive in that regard कि full house नहीं था उस वाले मैच में. And then obviously Peshawar Quetta में Quetta is the home side, but it is more so a neutral game, Yeah. right? यार, I would say Saadi that ground was 40% full at best. ऐसा ही है। इससे ज्यादा तो नहीं था. क्या क्या रीजंस क्या हो सकते हैं इसके पीछे? I have no idea. एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई कह रहा था टिकट्स मिलना बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा। हाँ, वो लेने में बड़ी ख्वारी है। I don't buy the whole dwindling interest bit क्योंकि Lahoris love their team. I know that. Lahoris love everything. Yeah, नहीं, कलंदर्स के लिए खास दिल में जगह है. नहीं, Lahoris love everything. Everyone. There is only one instance in Pakistan which I can think of, तब से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या 3 साल होने वाले हैं, where the home crowd is hostile, which is kind of a good thing. Fortress feels आती है ना That's आपको, Lahore. और वो लाहौर का crowd है when कलंदर्स are playing, और मैं ये उनकी तनकीद नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। weirdly enough मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी कि यार वो वाली फील आती है कि oh this is intimidating, Yeah. right? क्यों नहीं आप, why aren't you turning up? I don't know. Yeah. So this needs to be addressed somewhere. If there is some sort of an operational issue, then that needs to be addressed. I'm pretty sure there are operational issues. वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब लाहौरी अगर टर्न अप नहीं कर रहा था तो कुछ तो मसला है ब्रो। कुछ तो गंभीर मसले हैं. And you know this is not a good look for the PSL. हाँ। Not at all. और also I noticed कि boundary dimensions कुछ बेहतर हो गई हैं. हाँ। उस लेवल के अंदर नहीं लाए हुए, मगर वे भी थोड़ी अंदर ही हैं उस्ताद. And as for the surface is concerned, पहला जो मैच था लाहौर में, we saw steep bounce. Yeah. Now you're seeing variable bounce. ये कुछ बॉलें बिल्कुल बैठ रही हैं, कुछ बॉलें ऊपर आ रही हैं एकदम से, they're like spitting out of the That's surface. still a good pitch to Yeah. watch cricket on. Absolutely, no. Definitely a very, very good deck. Makes for compelling cricket and all of that. But then again, I feel like teams aren't particularly capitalizing on the conditions either. Did you catch the Haris Rauf wala little bit? नहीं। वो अंदर चल कर आ रहा था तो उससे पूछा कि how will you be looking to bowl on this pitch, this and that, variable bounce. उसने कहा I'll try to keep things simple. It probably is a flat deck. Okay. It is towards the flatter side. I'm not going to Not really. disagree. नहीं, But not really यार। the bounce is troubling batters. नहीं, I don't think it's a flat deck. अगर आप दोनों मैचेस उठा के देख लो तो कुछ स्कोर तो ज्यादा नहीं हो। मतलब इस तरह का नहीं, कोई माइनफील्ड टाइप ट्रैक नहीं है, is what I'm trying to say. I mean, जैसा कल क्वेटा ने अगर बॉलिंग करवाई है ना शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो वो तो काफी ट्रबलिंग थी ब्रो। बिल्कुल। टेस्ट मैच लेंथ वाज रियली गुड ऑन दिस पिच। Which is something I don't understand why other teams aren't just following suit. हाँ, You know? उन्हें फ्लैट डेक लग रहा है ना। अब ये प्लेयर्स की खामी भी हो सकती है, Yeah. कोचिंग स्टाफ की खामी भी हो सकती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी बिल्कुल। लेंथ पे यहाँ पे बॉलिंग करानी। क्वेटा ने आइडेंटिफाई कर लिया था
or they were really good with that. Also, in general, BR, if you've seen throughout this PSL, there has been a theme. Back of a length, yeah, a bit shorter length, theek hai, and you vary your pace. And that has worked for most people. You Yeah. think of Jason Holder, you think of even Hassan Ali, I right? mean, Hassan Ali has थोड़ा वो gooder good- length पे हाँ, उसका आगे channel जाता, होता है. अच्छा चलो, think of Abed Shah. no, Obed Shah has been Right? successful with that. So I don't understand why more teams aren't doing this. ये bowlers की अच्छी बात है या batters की खामियां हैं जो exploit होगी? I think this is just not क्योंकि enough अगर- homework. क्योंकि अगर हर डेक पे इसी तरह हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ी बैटर्स की भी वीकनेस है इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी है भी. कि वो नहीं है इसको खेल सक रहे. नहीं, और मतलब you can create your own length as well. We've seen people step out of their crease and then whack it, right? Do those things. Try to counter variable bounce in different ways. और कभी कभार यार अगर short length ball भी आती है, it is well within that wheelhouse of pulling or Pulling, cutting, and yeah. we've seen some people do that. Daryl Mitchell comes to Darren mind. Mitchell was great. Right? Yeah, yeah. He was amazing at that. But anyway, थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से टीम्स उस तरह एडजस्ट नहीं कर सकी इस सरफेस पे जिस तरह मैंने I एक्सपेक्ट किया don't know, था. throughout the PSL सिर्फ इस surface की बात नहीं है. I think throughout the PSL we haven't seen good cricket. Yeah, not like exceptional cricket. आप क्वालिटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क उठा सकते हो. ऑल्सो आई नो कि आईपीएल में भी काफी कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, बट यार पीएसएल में कुछ डॉलीज ड्रॉप हो रहे हैं. हाँ, आईपीएल में भी हो रहे होंगे. मे बी दैट्स बिकॉज T20 क्रिकेट में चांसेस ज्यादा बनते हैं, वॉट एवर, बट आई डोंट नो मैन, द एफिशिएंसी, कैच एफिशिएंसी हैजंट बीन गुड इन द पीएसएल आइदर. ग्राउंड फील्डिंग का भी कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा मेरा. तो फिर सूफी मैक इज द हाँ. फ्लैग बेयरर फॉर दैट, राइट? प्रॉपर विलेज विद द कैपिटल वी. अच्छा चलो पहले लाहौर और मुल्तान पे आ जाते नहीं, हैं. रिवर्स ऑर्डर पे चलते रिवर्स हैं. ऑर्डर Yeah, में yeah, चले. yeah. कोयटा पेशावर पहले निपटा लें क्योंकि वो मैच तो कुछ ज्यादा था नहीं. Yeah, honestly, the way Peshawar pulled things back in the bowling innings, Bowling, पहली yeah. innings में, I thought they had the advantage. But Quetta ended up, hammering Peshawar by 64 runs. मतलब कोई हल्की फुल्की victory नहीं, they absolutely smashed them. कोलेस्पस मैक्सिमस. Uff, बड़ा ही कोई गंदा किस्म का. And Quetta now have a 60% record, bro. Yeah. 5 games, 3 wins. They're looking good for They're playoff looking good, qualification. And हमने पहले भी जिक्र किया था कि यार इनका bowling attack काफी solid Yeah. लग रहा है. And one thing that I would... I'm still not too sure about their batting Yeah, composition. it is a bit iffy. Quality players, composition का मसला है. Good thing that Riley is up at 3 now. He should be batting at number 3. उस चीज पे मैं agree Yeah. करता हूँ. और opening भी ठीक है. साउथ शकील को नीचे तो नहीं फेंक सकते. I also think कि based on what sort of squad they have, उस हिसाब से कुछ ठीक मैनेज कर ही गए कर ही because गए. हसन नवाज को आप मिडिल ऑर्डर में ही डालोगे, फिर चैपमैन भी आ गया है. So it somewhat works. It works. Yeah. मतलब they're not the worst team in the tournament by any means. It may not always work is the they're- problem. They're probably the second or the third best team in the tournament as it stands. It's so weird because you've got Islamabad unbeaten 5 out of 5 and then मेरी अम्मी मुझसे पूछती थी कि बेटा सेकंड कौन है. I was like, अम्मा यार सारे ही सेकंड है. सारे ही like एक तरह से आप देखो तो हाँ शायद पेशावर और मुल्तान को आप जरा फर्क कैटेगरी में डाल सकते हो, मगर जब उन्होंने पूछा था तब पेशावर भी सेकंड वाली उसमें ही आ रही थी. 4 points से Yeah, सबके. because had they beaten Quetta, they would have had a 50% record, right? Everyone is, working with 50, 40, 60% records over here apart from Islamabad who have a 100% record. Which by the way I like. मुझे Yeah. पसंद है ये टूर्नामेंट तो एटलीस्ट इंटरेस्टिंग है ना. बिल्कुल. ये एक अलग बात है कि एक टीम ऑलमोस्ट बाहर होगी और एक टीम क्वालिफाई कर गई है. Yeah. लेकिन बाकी 4 का तो मुकाबला हो रहा है. Absolutely. वरना अच्छा. तो पहले ही मुक जाते होते. नहीं, ये वाकई बड़ी खुशाइन बात है. The only issue is over here that if Peshawar and Multan continue to tank it, तो वही वाला मसला आ जाएगा जिससे हमें डर लग रहा है. I mean, मुल्तान का अगला कोयटा के साथ है. Yeah. They need to win that. And we'll be coming live for that, by the way. हाँ. कल They live need to होंगे. win that because we want tournament to get interesting, right? Absolutely. But anyway, from Peshawar need to win their next one as well. हाँ. पेशावर के लिए हल्का सा मस्ट विन से नीचे है. Like they could probably afford one more defeat, I suppose. But Multan cannot. will do or die. या मुल्तान लिटरली अब डू और डाई पे पहुंच चुकी है. अच्छा, क्वेटा की मैं एक चीज पे तारीफ करना चाहूंगा Yes, sir. उनकी. यार दे हैव एक्चुअली असेंबल्ड गुड बॉलिंग अटैक्स एज पर कंडीशंस. उनकी bowling attack बहुत अच्छी है. या अब वो पेस हैवी गए हैं, गद्दाफी में समझ आती है. जहां पे स्पिन फ्रेंडली जाना हो Yes. वहां पे भी उनके पास 3 स्पिनर है पड़े हुए. अभी तो काइल जेमिसन खेल नहीं रहा. बिल्कुल. तो उसको यूटिलाइज ही नहीं करने की जरूरत. सो क्वेटा हैव डन वेल इन दैट रिगार्ड कि उनकी bowling यूनिट जो है ना, स्पेशली
वसीम जूनियर के वापस आने Yes, से और खुरम शेहजाद. खुरम शेहजाद has been terrific. Both of them. They've had two really, really good games, you know, and they have been imperative for Quetta on this surface. You know, ये जो Gazaffers में आपको uneven या variable bounce वाली surface मिली है, they've gotten that ball to talk. Particularly Khurram. He's gotten a lot of late swings, Hadi. और वही ना बैक ऑफ द लेंथ टेस्ट मैच लेंथ Yes. टेस्ट मैच लेंथ जो होती है ना उसने वो बॉलिंग कराई कल तो एटलीस्ट और पड़ी भी नहीं है विकेट मिली है Yeah. अच्छा चलो क्वेटा पे ना थोड़ी सी देर बाद आते हैं मैं जरा पेशावर पे फोकस करना चाहता हूँ let's get पेशावर out of the way shall we it was actually a good toss to win for them right and Babar opted to field unsurprisingly क्योंकि हमने देखा था कि फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले विकेट्स काफी गिर रही थी they couldn't particularly manage those but overall you know they pulled things back उसके बावजूद with that momentum they couldn't really make much of it और बैटिंग में तो कोलास्पस मैक्सिमस ही हुआ था एक चेंज थी सादी हाँ जी सूफी मैक came in for Yakubi Dooby Doo Yakubi Dooby Doo Do you think that was a smart change? हाँ मैं भी इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहता क्योंकि आरिफ याकूब अच्छा बॉलर है और पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने लेकिन लास्ट मैच पे इतना कोई ट्रबलिंग नहीं लगा बिल्कुल भी और सूफी मैक हमें पता ही है कि कितना पोटेंशियल है सीलिंग बहुत हाई है सूफी मैक की और आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन दे मेड didn't pay off at ये मैं जरूर बोलूंगा कि क्वेटा they went unchanged by the way but they had more seamers at their disposal Peshawar on the other hand did not but then again their spinners probably were their best bowlers oh well Alzari को निकाल दो अल्जारी एक तो पागल ही हो गया हमने जब से बातें की हैं अल्जारी ने कहा ये लो बेराम और साथ but I don't think there was any toss disadvantage over here यार if anything उनको advantage था you know and Peshawar now you know if you look at their record in this PSL 6 games 2 wins, 4 losses. And they'll need to go on a ridiculous run here on Saadi if they wish to qualify for the playoffs. And personally, I don't see it happening. नहीं ये तो हम पहले बोल रहे हैं What's the Luke Wood situation? खेला है ये वाला मैच I think he's done now. अब खत्म I think. That's another big blow to them, right? अब शायद नाहीद राना आके he can produce the goods or whatever. Still, you want Luke Wood to steam in with the new ball, won't you? Left arm angle, specifically, you know, someone who has new ball expertise. और Luke Wood का है कि वो ज्यादा पिटता नहीं है ठीक है वो गंदी बॉलिंग भी करवा रहा हो ना तो 10 की इकोनॉमी से तो मैंने उसे ऊपर जाते यूजुअली देखा नहीं हाँ नहीं इवन इन यस्टरडेज गेम मतलब क्या 35 रन्स खाए उसने 1 विकेट व्हाटएवर मुझे डर ये है कि जब नाहिद राना आएगा सबसे पहले तो न्यू बॉल कौन लेगा नाहिद राना लेगा नहीं साइम लेगा किसके साथ अल्जारी के साथ ही लेगा एंड दैट इज अ बिट वरीइंग और पढ़ने को आए तो फिर अल्जारी को भी पढ़ सकती पढ़ने को तो साइम को भी किसी दिन पढ़ सकती है ऐसी बात नहीं को भी पढ़ सकती हैं नाहिद को पढ़ती आ रही हैं साल में टी20s में आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स अली रजा को भी कल पढ़ गई अली रजा को तो कभी ना कभी पढ़ेंगी ना यार वो यंगस्टर है यू कैन यंगस्टर है वो सादी बट यू कैंट रिलाई ऑन हिम एज द लीडर ऑफ द अटैक राइट दैट्स अ बिट अनफेयर ऑन अ 17 और 18 ईयर ओल्ड बट ही इज बीन डूइंग सो वेल यार मतलब वाह अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंसेस पे आते हैं सादी बाबर के रिमार्क्स पे कुछ बातें करना चाहता हूं यस सर साइम अयूब का उसने बोला कि यू नो ही इज रिसेंटली कम बैक फ्रॉम इंजरी तो उसकी उसका फॉर्म नहीं लगी हुई ठीक है मेक सेंस वैसे उसने बॉल के साथ तो परफॉर्म किया है ऐसी बात भी नहीं है अपनी भी उसने फॉर्म के बारे में बोला कि ठीक है मेरी फॉर्म डाउन रही है आई हैव मैं नेट्स में जाता हूं तो मुझे लग रहा होता है कि मैं फॉर्म में हूं हां performances translate नहीं हो रही वो पिच के ऊपर so he hasn't been able to you know deliver the goods for his team either but there's one thing in there that really bothered me Haris it's the Haris remark कि Mohammad Haris lacks game awareness and he has thrown his wicket 2 or 3 times you want Haris to accelerate or you don't want Haris to accelerate he's been this beacon of hope within Peshawar's batting जो थोड़ी बहुत आपने performances दी हैं वो उसके ही बेहेस्ट पे दिए एक तरह से उसके और एक गेम में टीकेसी चल गया था वो भी तो फेल हो रहा है एक में बाबर भी चला एक में बाबर भी 1.5 में बाबर कह लो नहीं एक ही था वैसे डोंट काउंट द 46 of 41 but yeah I mean look I just don't think it makes a lot of sense to throw one of your best performers under the bus like that वैसे तो हुसैन तलत भी चला हाँ तलत भी चले उसका तो but you get what I'm saying right हाँ मुझे पता है एक चीज जो ठीक जा रही है उसको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो मोहम्मद हारिस जब आता है ना कल आउट हुआ है बाबर पहली बॉल पे आके आमिर को उसने छक्का मारा दैट्स द टाइप ऑफ प्लेयर्स यू नीड एग्जैक्टली T20 टीम के अंदर आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए who take on the bowler who say कि आओ मैं मारता हूं तुम्हें और अगर चल गए if they deliver they will take the game away from the opposition और अगर हारिस की आप चाहते हो कि वो लंबा खेले और 50 बॉलों पे 60 कर ले तो फायदा नहीं
फिर क्या करना है आपने, फिर आपने यही स्कोर करना है। एग्जैक्टली So- वो भी अगर देख कर खेलने लग जाए तो फिर क्या ही बनेगा। So the issue is not Mohammad Haris. Issue is you not clicking, Babar, Yes. and issue is Saim not clicking. एंड और इशू साइम को तो हम अभी कुछ कह नहीं रहे नहीं, क्योंकि इंजरी से वापस। उसको भी कुछ नहीं कह रहे हम। आई एम विलिंग टू गिव हिम एज लॉन्ग अ रोप एज पॉसिबल। एंड देन द इशू इज जब TKC आता है फर्स्ट ड्रॉप पे एक मैच पे चला है, उसके अलावा उसने क्या किया, एग्जैक्टली क्या किया टीम? मतलब 5 failures and 1 success for a platinum pick. Long hair mullet TKC hasn't done well. No. Oh, by the way, P-Dog चला गया यार। P-Dog कल तो था कल था। अच्छा हाँ कल था, मैंने चलो। देखा लॉन्ग हेयर P-Dog। अच्छा तो लेकिन देखा। प्रॉब्ली चला ही जाएगा। या वो पता हाँ, चला मुझे political भी उसमें। situations जो है ना। Yeah, there are a lot of broadcasters who've also left. अच्छा, before coming back to the game, there have been some schedule changes in the PSL. Yes, So sir. मुल्तान बेचारों से फिर एक ज्यादती हो गई है। एक होम गेम खा गए। एक होम गेम चली गई है उनकी, और वो लाहौर शिफ्ट हो गई है थर्सडे वाली जो आ रही है। Yes. जो कि डबल हेडर है जिस दिन। Absolutely. और फिर एक रीस्केड्यूल भी हुआ है उनका मैच। चलो रीस्केड्यूल वाले की तो टेंशन नहीं है मुझे, वो तो फर्क दिन पे आपने मैच किया, प्रॉब्लम उनकी डे गेम हटा दी है। हाँ, Right, day game हट गई है। तो चलो जहां पे उन लोगों ने सोचा होगा कि इनको एक होम गेम इनसे छीन रहे हैं, वहां पे उनको वो डे गेम वाली चीज वो easy कर दो। स्केड्यूल चेंज बाय द वे हुआ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग टीम भी चेंज हो गई है, Yeah. तो थोड़ा सा लॉजिस्टिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए Absolutely. उन्होंने किया है, व्हिच मेक्स सेंस। It does make sense, but I do feel for Multan. I know that their chances of playoff qualification are negligible, but then again, you want to be playing 5 games at home, नेग्लिजिबल man. नहीं है ब्रो, दे विन 4 out of 4, दे एंड अप ऑन Sure. 10 points। हाँ, negligible नहीं है, चलो उससे थोड़ा सा ऊपर है शादी। लेकिन डू और डाई। डू और डाई है, मगर इस तरह की सिचुएशन में अगर मैं होम गेम लूज करूँ ना तो मुझे काफी तब चिढ़े ब्रो। आई डोंट नो, इसमें कोई शक नहीं। अगली गेम मुल्तान की कल है ना, Yes. पता चल जाएगा। हाँ, कल ही दूध का दूध पानी का पानी हो If they जाएगा। win suppose. it, तो फिर मैं भी तब No, but for instance, like, चलो टीम को छोड़ो, forget the Fans. think tank and forget whatever management. Think about the Multan public. I know, लेकिन- उनका एक मैच कम हुआ है। बेशक, लेकिन क्या करें, सोल्यूशन बताओ ना। Yeah, हुआ होगा, you've got to kind of adjust on the fly. यू हैव टू। इस Yeah. तरह की चीजें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके बारे में क्या करे बंदा। Yeah. इस बारे में तो मैं PSL को कुछ भी नहीं कह रहा। आई थिंक they've made the correct decision। They have done some firefighting which was necessary and they couldn't really बस- do much over here. बस, ठीक है। But yeah, it's unfortunate, पर अब क्या ही हो सकता है। हाँ। अच्छा, before we come to their bowling, पेशावर की बैटिंग पे तो आओ जरा यार। 41 for 3 in the power play, bowled out for 114 in 15.2 overs. मोहम्मद आमिर, Yeah. बाबर आजम को फिर से उसने आउट किया। Yes, sir. माय गॉड, एक तो कमाल बॉल थी वो। और फिर सेलिब्रेशन भी किया उसने। सेलिब्रेशन तो कोई विव वाली उन्होंने हाँ। बताया कि कोई उन दोनों का चल रहा था। Yeah. बट बाबर आजम कैन नॉट प्ले लेफ्ट आर्म सीम, इट सीम्स। Yeah, dude, like, so क्या 6 मैचेस हुए हैं? I have the numbers. 5 दफा लेफ्ट आर्म सीम। ठीक है। So as Saad said, Mohammad Amir got Babar Azam again. This time LBW, हाँ। जो कि बड़ा ही गंदा रिव्यू था। हाँ। He was stone dead. यार एक तो ये बाबर रिजवान हमेशा रिव्यू लेते हैं जो हाँ। मर्जी हो, ये क्या बात है? बहुत ही थका हुआ रिव्यू था। शाहीन, He was plumb. ये तीनों हमेशा रिव्यू लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं है कि ये रिव्यू क्यों लिया है। इनको एक रिव्यू दिया करो, फिर देखना हाँ। कैसे लेते हैं। But anyway, 4 out of 5 dismissals this PSL season for Babar Azam have come versus left arm pace. जो एक और dismissal है वो slow left arm के खिलाफ है। हाँ। So left arm bowler से खिलाफ हाँ। 5 dismissals है और 4 दफा left arm seam के खिलाफ और है। उन ठीक है? 4 में से 2 दफा आमिर के खिलाफ। 2 दफा आमिर के खिलाफ है। If you look at his overall numbers versus Amir, I Crickmetric this son. हाँ। मैं गया हूँ, I went there, हाँ, right? शुक्र है। यार क्या इनका बैटल क्या बनती है? Throughout their careers, Mohammad Amir has only bowled 33 deliveries to Babar Azam. No. Babar Azam has only scored 29 runs And- in those 33 deliveries. तो run a ball भी नहीं वो उसकी strike rate, ठीक है, आमिर के खिलाफ. And he has been dismissed by Amir a grand total of 3 times, which means he's averaging less than 10 versus Mohammad Amir, ठीक है. 22 dots in the 33 deliveries. तो 11 balls पे सिर्फ score कर सके और उनमें से 6 चौके हैं. इस सीजन ही प्लेड आमिर लाइक 6 or 7 डिलीवरीज उसकी खेली है, Yeah. 1 रन बनाया, 2 दफा आउट हुआ। बिल्कुल. So clearly Mohammad Amir has the wood over Babar Azam. I know small sample size, मगर he's getting him out every 11 deliveries. Right? नहीं होता भाई फिर। 33 balls में 3 dismissals है. स्मॉल सैंपल हाँ, साइज तो मतलब नहीं। लेस देन 2 ओवर्स में उसको आउट कर देता है. सो क्लियरली ही हैज द एज ओवर बाबर आजम. और आमिर से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला यार कि देखो मेरे फैंस मेरे एडिट्स लगाएंगे, बाबर के फैंस बाबर के एडिट्स लगाएंगे. दिस इज हेल्दी फॉर द PSL. एक तो एडिट से मैं बड़ा तंग हूँ। बट एक तरह से उसकी बात ठीक थी कि बात ठीक है।
इस चीज को आप इन बैटल्स को सेलिब्रेट ही करें. बैटल्स रहने देना, मतलब हाँ. इनको लड़ाइयों में तब्दील ना या यार पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं. बैटल्स रहें तो ठीक है. मगर चलो ये तो आमिर की हमने बात की ना. 33 balls, 29 runs, 3 dismissals, 22.6 fours. 22 fours तो क्या ही बात थी. If you just look at Babar Azam versus left arm pace in PSL X, right? Yeah. He has faced 28 deliveries. He has scored 8 runs, right? And he has been dismissed 4 times. Yes. So he's averaging 2 versus left arm pace this season, and he's got a strike rate of under 30, 28.6. मुझे समझ नहीं आती बाबर जितना कंसिस्टेंट है ना, वंस ही स्टार्ट स्कोरिंग सेंचुरीज, जब शुरू में करता था सेंचुरियों पे सेंचुरियां, फिर फंसने लग गया लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ, तो फंसने ही लग गया लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ, फिर लेफ्ट आर्म पेस के साथ फंसने लग गया तो फंसने ही लग गया. अब देखो ना, दो दफा आमिर ने आउट किया, एक दफा डेविड विली ने आउट किया, एक दफा डुआर्शीस ने आउट किया. बाय द वे, इससे शाहीन और मीर हमजा भी नहीं खेले गए थे. नहीं, मीर हमजा ने तो ऑलमोस्ट निकाल भी लिया. मीर हमजा एक्चुअली डिजर्व्ड हिज विकेट मोर देन एनीवन, आई फील. और वो तो आउट नहीं कर वैसे मीर हमजा ने किया था ना. So I mean, 8 runs of 28 deliveries versus a specific bowling type, he's become targetable. ये मसला हो गया ना. या और बल्कि अब तो आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या ओपन करना चाहिए, सो इनके वो तो लेफ्ट आर्म सीमर्स तो ओपन करने ही आते हैं, न्यू बॉल के साथ आते हैं. क्वेश्चन आप अब नहीं कर सकते, क्वेश्चन आपको पहले से करना चाहिए. When you've got 4 openers in your team, और मेरे लिहाज से तो जब मोहम्मद हारिस भी बैठा हुआ है और मिच ओवन भी बैठा हुआ है, जो कि पावर प्ले में आपको इतना एडवांटेज दे सकते हैं जो कि बाबर नहीं दे सकता, सीधी सी बात. और आपस की बात, आई डोंट इवन नो वेयर टू स्लॉट हिम इन. आई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम होल्ड द ओपिनियन और हैव हेल्ड द ओपिनियन कि बाबर को ओपन ही करना चाहिए, कि आप उसकी यूटिलिटी और कहां ही निकाल सकोगे. मगर अगर इतनी ग्लेयरिंग वीकनेस आ गई है लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट, तो फिर तो आप क्या ही करो यार. क्या यू हैव टू सेव हिम फ्रॉम दैट बॉलिंग टाइप. I don't know, is it because के उसने अपनी टेक्निक चेंज करने की कोशिश की है, जो एकदम ये वाला उसका मसला I feel like he gets blindsided by the angle and then the ball is also moving where it's new. पहले तो नहीं होता ना. पहले नहीं होता, तो कुछ चेंज ही किया है ना. If anything, बाबर का जो स्लंप आया था राइट आर्म पेस से ज्यादा डिसमिस हो रहा था. Think Hazelwood, remember? नहीं तो ये क्या इसने अपनी टेक्निक में कुछ चेंज किया होगा टू टैकल सम लेफ्ट आर्म स्पिन, आई गेस, और समथिंग. देखो, स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए कुछ किया है जिसकी वजह से इतना बड़ा टेक्निकल फ्लॉ आ गया. He is both an LBW candidate versus left arm seam right now, and also इसकी outside edge भी निकल रही है. Slips पे भी आउट हो रहा है, कॉट behind हो रहा है. So something needs to be done. बाबर यार हारिस पे इस तरह बोलने से पहले जाकर अपनी ये चीजें ठीक कर लो. You'll be better off. #fix yourself. Yeah, #fix yourself, absolutely. Khair, tell me what the other batters did, Saadi. यार क्या कुछ भी नहीं किया. Yeah. जरा स्कोर कार्ड पढ़ो ना, बहुत ही शॉर्टी लुकिंग था. Saim you 5 of 4. Again, साइम को जितनी लंबी रोप मैं दे सकूं दूं. TKC 5 of 8. Platinum, Mullet, TKC again 5 of 8. 5 failures out of 6. This is also very, very poor. Haris 17 of 16. चलो मतलब वो वैसे 9 पे भी आउट हो सकता था. वो बड़ी जोर की लग गई कुसाल मेंडिस को. आई वुडंट कॉल दैट अ ड्रॉप कैच. दैट वाज रियली टफ, बट ही कुड हैव बीन आउट अर्लियर, आई सपोज. हुसैन तलत 39 of 34. अगेन तलत वाज लाइक ड्रॉप ट्वाइस, वाजंट ही? क्या करे वो? या एक दफा वैज जूनियर ने ड्रॉप किया व्हेन ही वाज ऑन 12, एंड देन फिन एलन ने भी ड्रॉप किया था व्हेन ही वाज ऑन 29. I mean, वो तलत को तो मैं कोई ब्लेम ही नहीं कर रहा. He was still their best batter despite those things. अब्दुल समद 2 of 2. Mitch Owen 15 of 8. Yeah, dude. बाकी तो 0-8-4-0. As sorry looking a batting card as you could imagine. और long hair या mullet platinum TKC को बंदा बोले यार तू do you not know कि तूने guard कहाँ लिया हुआ है? You're getting bowled behind your legs. They need to take him out. Yeah. I feel. They have to. Max Bryant को ले आओ. भाई, if I am giving a player platinum money and they fail ridiculously in 5 out of 6 games, does that player retain their spot? I don't think they should. They shouldn't. यार, और ये नहीं है ना कि आप उसको निकाल के टीम अपनी फारिग कर लोगे, आप बेहतर करोगे मेरे लिहाज से. You slot in Mitch Owen in the top 3. Bring in Max Bryant और उसको lower down the order खिलाओ, आपका बहुत बेहतर बैटिंग ऑर्डर हो. Probably यही करना पड़ेगा आपको. TKC की 3 तो मुझे पहले भी सेंस नहीं बन रही थी. मुझे तो वैसे जब प्लैटिनम वो हमें राइट टू मैच किया था, मैंने तभी साथ पकड़ लिया. We never understood that decision. बीच में जब उसने एक परफॉर्मेंस दी तो मैंने कहा चलो he needed this, he's justified his pick, but he hasn't. 6 games में 5 failures है. और manner of dismissal देखो कल. बहुत ही गंदा. Was really poor. He didn't know where his leg stump was. Schoolboy stuff. Yeah, amateur. Novice.
पेशावर नीड टू मेक सम चेंजेस. मेरे लिहाज से जो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें जो डाउट है कि वो नहीं कर सकेंगे वापस कम बैक, मुझे भी वही है. और ये हम काफी देर से कह रहे हैं. मेरे लिहाज से तो ये they've exceeded expectations. Yeah, honestly, 2 wins out of 6 with this team. मुझे नहीं लग रहा. And one of these games जो एक जीते हैं पिछली इस वाली से पहले, they're bowling on that game which we weren't even expecting, right? मैं तो कह रहा था कि मतलब जो पोजीशन मुल्तान की है ना इस वक्त, मुझे लग रहा था पेशावर की वो. Honestly. They've exceeded expectations. मेरी प्री टूर्नामेंट हम दोनों की बल्कि ये प्रेडिक्शन थी कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन PSL हिस्ट्री दैट पेशावर विल नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, एंड सो फार दैट इज अलाइनिंग. ठीक है, बल्कि मैंने पिछले शो में भी बोला था कि मुल्तान और पेशावर मुझे लग रही है. आई गिव क्वेटा दैट नॉड, इवन दो आई फील लाइक दैट टीम आल्सो हैज इश्यूज, बट दे हैव अ हाई सीलिंग. लो फ्लोर अगर है भी ना क्वेटा का, दे हैव अ हाई सीलिंग. सो आई फील लाइक जब चल जाते हैं वो, तो फिर उनके जीतने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं. मेरे लिहाज से पेशावर का भी थोड़ा सिमिलर स्टफ है. दे डू हैव अ हाई सीलिंग, प्लेयर्स क्वालिटी हैं अभी भी, लेकिन फ्लोर बहुत लो है. मुल्तान का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. अच्छा खैर, मेरा कहने का मकसद ये है, पेशावर ने अगर ये सीजन अपना बचाना है ना, तो दे नीड टू हैव अ लॉन्ग हार्ड लुक एट TKC. थोड़ा बैटिंग ऑर्डर अपना इंप्रूव करें. अब लूक वुड चला गया, दैट्स गोना बी लूक वुड इज गोइंग टू बी अ मैसिव ब्लो. उसके बाद ही वाज लाइक कंसिस्टेंट न्यू बॉल, क्या कहते हैं, आउटपुट. फिर थोड़ा सा अगर फिर भी नहीं कुछ होता ना, तो सबसे पहले तो अगले सीजन के लिए अपनी मैनेजमेंट चेंज कर. Absolutely. I mean, I do not understand why Javed Afridi is hell bent कि नहीं, I don't want to change anything with respect to this management, where you have थोड़े ब्रांड एम्बेसडर कम करके मैनेजमेंट में पैसे exactly जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो वहां से बजट थोड़ा खाली करो और क्वालिटी स्टाफ को लाओ. क्वालिटी टीम बना दो ना, मैनेजमेंट एंड टीम, वो फैंस खुद ही आते. आप क्वालिटी मैनेजमेंट बनाओगे तो क्वालिटी टीम बनेगी. पेशावर की फैन बेस इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री, क्योंकि मैनेजमेंट ही ड्राफ्ट में बैठी होती है. ठीक है, देखो पेशावर की फैन बेस इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री. उनको ये शॉर्ट फिल्म्स दिखा के आप और फैन बेस नहीं बढ़ाओगे इस वक्त. Honestly, परफॉर्मेंसेस से बढ़ाओगे. You might have made the playoffs for many seasons in a row, 9 seasons, but for a long time you've been mediocre now. You haven't been looked upon as contenders. I mean, 6 teams में playoffs में qualify करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वो रिकॉर्ड हो गया अगर आप 4 पे कंसिस्टेंटली क्वालिफाई किए जा रहे हो और फिर आगे नहीं जा रहे हो. एक टाइटल जीते हो, वो भी डिप्लीटेड क्वेटा के अगेंस्ट. एस्टेरिस्क वाली टाइटल है वो. नॉट सेइंग कि एनीथिंग शुड बी टेकन अवे फ्रॉम देम, क्योंकि वो फाइनल में पहुंचे थे, मगर फाइनल में जो उनको क्वेटा मिली थी वो बिल्कुल थक्कड़ किस्म की क्वेटा थी. ओवर द पास्ट 9 सीजंस, अभी 10 तो चल रहे हैं, इसके बाद ही बात करेंगे, लेकिन 9 सीजंस में you've underperformed. जिस तरह की टीम और जिस तरह का सब कुछ है पेशावर का, I'm pretty sure the fans won't be happy with it. No, and overall across 10 seasons even now you've been net negative, right? ठीक है, आप शुरू में बहुत अच्छी टीम थे, पहले 3-4 सीजन उठाओ तो पेशावर were contenders always. 4 सीजन्स में तो थे ही थे. उसके बाद नहीं थे. PSL 5 onwards, they've been mediocre, man, and they haven't really been proactive with respect to changing that. We've seen similar issues over and over again. Bowling का issue जिस तरह कभी सही तरह फिक्स ही नहीं कर पाए ये लोग. फिर इस दफा इतने टॉप हैवी चले गए कि आपके पास लास्ट ईयर भी टॉप हैवी थे. You don't understand how to fit in all of those top order batters together. लास्ट ईयर भी टॉप हैवी थे. They had हसीबुल्ला in there. तो चौथे पे हसीबुल्ला आता था. I remember that. Anyway, closing notes on their batting, Saadi. I feel चलो बाबर ने ओपन करना है कि नहीं करना, आप मिच ओवन को ऊपर लाओ, आप TKC को निकाल दो, मैक्स ब्रायंट को, ठीक है, मैक्स ब्रायंट को लेकर आओ लोअर मिडिल ऑर्डर में, अब्दुल समद साहब वो नीचे बैटिंग करे, बीच में आपके 4 पे हारिस, 5 पे तल्लत, यही बनता है. वो तो अब बनता ही है. हाँ, और कुछ कर नहीं सकते आप, और बाकी गुड लक रिप्लेसिंग लूक वुड. आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज दैट. अच्छा, बॉलर्स करो ताकि हम फिर आगे निकले यार पेशावर से. कुछ भी नहीं है यार. नहीं, अली रजा को 48 पड़ गए. चलो कोई मसला नहीं, हो जाता है. सूफी मैक को 33 पड़ गए. सूफी मैक बेचारे ने कुछ एजेस निकाली थी, स्लिप नहीं थी, रिमेंबर? लूक वुड 1 for 35 बात कर ली उसकी. लूक वुड अगेन, दिस इज नॉट अ टेरिबल परफॉर्मेंस. I take that any day of the week. Alzari Joseph 3 for 33 and 4 overs. And Alzari Joseph's wickets, Saadi, 3 for 33 में are Finn Allen, Kusal Mendes and Rana Fahum. तीनों क्वालिटी विकेट्स. राणा फूम ने अभी परफॉर्म तो किया था ना, क्वालिटी नहीं, पिछले मैच में किया था. चलो यार, फिन एलन और कुसाल मेंडिस तो है ना क्वालिटी. सो दैट 3 for 33 is directly followed up after that 3 for 15 which was a player of the match performance. फिर वो जैनब अब्बास ने उससे पूछ लिया कि what was it like getting Saim Ayub out. यार क्या ही बोले, हो जाता है, हम भी इधर उधर फ्रॉइडियन स्लिप्स हो जाती हैं यार. मैं उस पर इतना उसको नहीं बोलूंगा, बट it was funny. अल्जारी अपॉलॉजी फॉर्म भेजो,
साद और मैं वापस साइन करके भेजते हैं, हम कहीं छाप देंगे, ठीक है? सॉरी मैन, Because you've been terrific for Peshawar 2 games in a row now and 3 for 33 के साथ you kind of were their best bowler once again. वहां पे फिल एलन को शुरू में आउट ना करता या बाद में मेंडिस को आउट ना करता, बहुत पड़ जाने, बहुत ज्यादा स्कोर पड़ जाना। I was particularly impressed with Simon. I loved Simon 2 this for game. 24. And look at his wickets, right? He cleans up Riley Russo, And South जो Shakil. मार रहा था। हाँ. साउथ शकील तो फिर चलो अजीब सा ही नॉक था, but he holed out versus Simon as well. 2 for 24 in 4 overs, and he was Peshawar's 5th bowler, which was an absolute bonus. No. जो derail हुई है ना क्वेटा की इनिंग्स, वो साइम ने किया है यार। उसने आकर वो 2 विकेटें निकाली हैं, and you know at one point I thought कि ये 200 मार देंगे, and they ऐसे only ही लग रहा था। ended up with 178 for 7. यार क्वेटा after the power play was 67 for 1. सिर्फ फिनैलन आउट हुआ था, वो भी बथेरा डैमेज करके, and they end up with 178 for 7 and That was 20. a poor batting performance by Quetta. by the I way. literally thought this was advantage Peshawar क्योंकि हाँ. Quetta just managed 111 runs in the 14 overs post power play, ठीक है, and they lost 6 wickets in the process. So yeah, ये एक तरह से थोड़ा सा बेहतर खेल जाते तो जीतना पेशावर को मैच। पेशावर को एडवांटेज था ब्रो। पिछले मैच में 186 चेस हुए, नहीं। वो आराम से जीती है लाहौर। पेशावर को जीतना चाहिए था, ये अपनी गलतियों की वजह से हारे। गुड बॉलिंग बाय क्वेटा एंड स्टूपिड बैटिंग बाय पेशावर। अच्छा हमारा एक है क्या नाम है उसका, गुलाम, हाँ, ठीक है, जानी। He wanted us to talk a bit about Babar's batting. Sorry, बाबर की बैटिंग तो कर ली है बात, Babar's captaincy, ठीक है। So we obviously care about our Jani, so we'll address this as well. उसके 2-3 पॉइंट्स थे। एक वो कह रहा था कि why did you bring Sufi Mac ahead of Saim Ayub? I disagree with that one. I feel like Sufi Mac is a more aggressive or attacking option than Saim Ayub. उसको पहले लाया, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है सच, मगर उसका दूसरा पॉइंट जो था ना वो वैलिड था सादी। He said कि यार अली रजा को आपने रायली के सामने पावर प्ले में क्यों फेंके when he can be a very good middle overs enforcer? आप उसको बचा के रखते, वहां पे आप साइम को या चलो सूफी मैक को ही ओवर दे देते। That I agree with. Riley loves space. उसने लिखा है, हाँ एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि he kept bowling Ali Raza to Riley when everyone knows Riley loves space. Yeah. हाँ, And it is common knowledge. और फिर साइम ने आकर उसको आउट भी किया, क्लीन अप कर दिया रायली को। मगर लुक, ये सारी बातें ना ज्यादा हाईलाइट हो जाती जब आपकी टीम हारती है। ओवरऑल आई फील लाइक इसकी कप्तानी इतनी कोई खराब नहीं थी। हाँ, और गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं कि एक और पॉइंट था उसका, why was Sufi Mac at deep third when we know he's a terrible fielder? Oh my god. He is a terrible fielder. He is atrocious. लेकिन मुझे बताओ फिर उसे कहाँ पे का हाइड आप करोगे? हाइड ही करना ना आपने इवेंचुअली। अब इनर रिंग में तो आप करने से रहे, आप डीप थर्ड या फाइन लेग पे ही लोगे उसे। वही करना पड़ेगा यार, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब उसने लिटरली एक तो नटमेग हुआ है वो, उसने नीचे हाथ किए सिर्फ। यार इवन आई नो कि फील्डिंग में ना बॉडी पीछे लानी है, एक पूरा पाँव आप नीचे नहीं करते और इसका आराम से फील करते ना हो। सो दैट वाज रियली पुअर, लाइक एक्चुअली लाइक स्कूल बॉय स्टफ। और फिर इसने एक कैच आ रहा था, इसने कुछ किया ही नहीं उसका, ये देखता ही रह गया उस कैच को यार। इट वाज अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी यार, ये बहुत ग्लेयरिंग वीकनेस। एंड सूफी यार, You can be the best bowler in the world, but आजकल की क्रिकेट में इस तरह की फील्डिंग से आप नहीं कर सकते। आप यार Survive. युजवेंद्र चहाल से भी थकी हुई फील्डिंग कर रहे हो, and that's saying something, right? I mean, हमारे इधर भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं देने के लिए। मगर सूफी मैक takes the cake, man, as far as He poor does. fielding is concerned. He does. I don't think I've seen a worse fielder for Pakistan in a while. और इसकी बहुत ही थकी हुई फील्डिंग। हाँ, इससे ज्यादा बुरा नहीं देखा, लेकिन कंपटीशन काफी है। Yeah, but overall यार बाबरी कैप्टनसी पे I agree with your Ali Raza bit. वो मैचअप वर्सेस रायली, and especially when you can save him for the middle overs. बाकी ठीक थी। वो ठीक है, इन्फोर्सर के तौर पे उसको इस्तेमाल करो। बाकी यार I actually thought his usage of Saim Ayub was quite good. You know, मैं तो उसको मार्क्स दे रहा था वहां पे, लेकिन उसने 4 ओवर निकलवा दिए साइम के। मुझे कैप्टनसी से ज्यादा इश्यूज नहीं थे। नहीं। The only issue I have with Babar right now is his batting rate. Yeah. वो तो फिक्स करे ना। लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ अब कितना और आउट। देखो बात ये है कि उसने पाकिस्तान के लिए अभी कप्तानी तो करनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बैटिंग जरूर करनी है उसने, तो मुझे उसकी टेंशन है। अच्छी खासी और टेंशन तो कोई है। पर खैर tension T20s में तो फिलहाल ही doesn't get in the team. हाँ, नहीं। Not on this performance, right? नहीं। बाबर रिजवान दोनों नहीं आते। हालांकि रिजवान तो हनीफ मोहम्मद कैप होल्डर है, मगर उस पे आएंगे। अभी He's going to be spoken of in detail. वरुण ने चीजें भेजी हुई बड़ी, मगर थोड़ा सा रुक जाए आप। अभी फिलहाल हम पेशावर को खत्म कर रहे हैं ना। हो गया ना, हो गए सारे bowlers. Well, that is that, and yeah, I don't think they're making the playoffs. Quetta. अच्छा, क्वेटा में कहाँ पे आना है सबसे पहले? क्योंकि ग्लैडिएटर कहाँ में आना है सबसे? यार एक ही जगह से शुरू कर सकते हैं। राणा जी छत पे तुमने गाने खराब कर दिए। शुरू से छत From पे the top. सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं
सन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती माड़े से हो गई। गुपचुप 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 गुपचुप। हमने बोला था कि राणा जी बॉल के साथ बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, पिटते जा रहे, हमने पिटते बोला जा रहे। राणा जी परफॉर्म नहीं कर रहे, राणा जी ने बैट के साथ चांटे मारे। हाँ, हमने बोला चलो बैट के साथ चल के बॉलिंग के साथ कुछ नहीं कर रहे, अब राणा देख जी लो। ने पंजा मार दिया। राणा जी एक वो प्लेयर है, फिर आप कह सकते हो जिन्होंने अपनी प्लैटिनम पिक जस्टिफाई की है, 2 मैच दे दिए आपको, 2 मैच जितवा दिए। और अगर 3 जितवा देता है, व्हाट एल्स कैन यू पॉसिबली आस्क फॉर? यार ये राणा जी जो है ना, ये इन्होंने लास्ट पीएसएल में भी मेरे साथ यही किया था। मैं नहीं बातें कर रहा राणा जी के बारे में। भाई राणा जी को देखो तो सही, पहले ओवर में आए, रिमूव्ड साइम अयूब विद अ वेरी गुड डिलीवरी। Really, I can't even fault Saim much for that one. मैं बताता हूँ हुआ क्या ना। मैं बोल रहा था कि यार राणे को कहीं यूटिलाइज करना है तो आप उसको पावर प्ले में न्यू बॉल के साथ करो। ये वैसे साथी ने कॉल की थी। बेराम ने मुझे मैसेज किया, ये देख लो राणा जी के साथ क्या हालत हो रही है, जब बाबर ने उसे छक्का और चौका मारा। जैसे ही मैंने बोला ना, मैसेज आया वहां पे साइम अयूब की विकेट, कहता है यार अच्छा, ये तो होना था। वो मेरे ख्याल से मेंडिस को समझ भी नहीं आई क्या हुआ है। उसने तो अपील भी नहीं की। उसको अपील इतनी थिक एज। यार वही बात है ना, राणा जी की जो बॉल थी ना वो बहुत उठ रही थी, बहुत ज्यादा। जहां पे बाकियों की बैठ रही थी, राणा जी की बॉल, यू नो, इट वाज स्पिटिंग वेनम। और जिस तरह कैरी हुई है, कुशल मेंडिस को समझ ही नहीं लगी हुआ। ये नहीं आता कि राणा जी की बॉलिंग पे इतनी कैरी हो रही है। सो एनीवे ही रिमूव्ड साइम अयूब इन द फर्स्ट ओवर, मोहम्मद हारिस एंड अब्दुल समद इन हिज सेकंड ओवर, लूक वुड इन हिज थर्ड ओवर, एंड देन सूफी मैक इन हिज फोर्थ ओवर. Either way, ends with 5 for 33 next to his name, as Faraz Bhai from Renukatte says, Mr. PSL, Yes, Mr. PSL. player of the match. Rana ji and Impact go hand in hand. PSL के दौरान आइंदा कभी से मत शक करना। मैंने कुछ बोला नहीं, कभी भी नहीं। मगर I will give you points for saying कि यार उसको न्यू बॉल करानी चाहिए थी, न्यू बॉल से बॉलिंग करानी चाहिए। मेरे लिहाज से राणा जी, जब जितना मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखा है ना, ही इज बीन मोर सक्सेसफुल विद द न्यू बॉल रादर देन इन द मिडिल, क्योंकि मिडिल में उसकी बॉल कुछ होता नहीं है उस बॉल में। शुरू में उसको थोड़ी सी स्विंग मिल जाती है, स्पेशली अगेंस्ट द लेफ्टी जब वो टेल अवे कर रहा होता है। एंड ऑल्सो ये भी कंसिडर करें कि यू गॉट मोहम्मद आमिर एट वन एंड हु इज गोइंग टू बी बॉलिंग अ मिक्स ऑफ अटैकिंग एंड डिफेंसिव लेंस। ठीक है, वो सारी अटैकिंग लेंस नहीं कराता, वो तो फिर शूट बॉलर है ब्रो। राणा फहूम नीड्स टू जस्ट टारगेट दैट चैनल विद द न्यू बॉल। ना कराओ फुल, कोई जरूरत नहीं है। शुरू में करवाई थी ना 2 बाबर ने फिर एक्सटेंशन ऑफ हिज आर्म्स दिखाई थी, एक छक्का मारा और एक चौका मारा, फुल करवाई। जैसे उसने लेंथ पीछे की अपनी, ही वाज इफेक्टिव। और भाई जहां पे भी वो पिच कर था ना, वहां पे बहुत डॉजी बाउंस था, और इसकी सारी उठ रही थी, और इस पिच पे करना ही ये था जो इसने और खुरम शहजाद ने परफेक्टली किया। लिटरली। मैं सिर्फ बस एक सेकंड तुम बात करो, मैं जरा एक स्टैट्स देखना चाह रहा हूँ, राणा जी की विकेटें कितनी हो गई हैं। हाँ, वैसे पीएसएल में देखना पड़ेगा राणा जी की विकेट कितनी हो गई हैं। 5th हाईएस्ट तो था ही राणा। All I can say is that Nabil Hashmi will have a wry smile on his face after these last 2 performances. एक में राणा जी ने बैट से जिताया, एक में बॉल से जिताया. He is literally like a perennial problem solver for any team that he plays for in the PSL. यार सीन ये है ना, उसकी प्रोफाइल जो है ना, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। राणा जी PSL में तो हाई क्वालिटी है, लेकिन ओवरऑल उसका जो प्लेयर प्रोफाइल है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है किसी भी टीम के लिए। इफ अ सीम बॉलर हु कैन बॉल अप फ्रंट एंड ही कैन बैट अ बिट और लेफ्ट टू, and he can hit a bit as well. नहीं, he can hit a fair bit. और हाँ, राणा जी is not really good against spin, but उनको आप अगर बचाकर रखो इफ्तिमेनिया रोल में, अगर उनको यूटिलाइज करो आखिरी 5 ओवरों में, तो he can come and whack pace very efficiently. उसने लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी 2 मैचेस बैट से जितवा ही दिए। नहीं, प्रॉपर फिनिशर है भाई। PSL में। ठीक है, इस लेवल पे राणा जी इज अ फिनिशर सुप्रीम, आप उनको डाउट नहीं कर सकते। 84 विकेट्स हो गई हैं राणा जी की, ही इज द 5th हाईएस्ट विकेट टेकर इन द लीग। 75 इनिंग्स में 84 विकेट्स, 24.76 की एवरेज एंड 8.62 का इकोनॉमी। Economy is a bit on the higher side, but then again you expect that. And he's got 2 fifers. Yeah, it's insane, man. जो कि सिर्फ शाहीन के और he's not even an attacking bowling option, and yet he's managed so many wickets, but that's just because he's a clever bloke. और on his day, जब दिन होता है ना राणा जी का, खा जाते हैं वो। नहीं, जब दिन होता है राणा जी का तो वो मैच जितवा के। और पता है, क्वेटा ने अभी और मैचेस खेलने हैं इस लाहौर डेक पे। राणा जी को तो कोटा मिलने वाला है पूरा 4 ओवरों का, if he continues to bowl at those lengths. और at those lengths with the new ball. Yes. मेरे लिहाज से बेस्ट यूटिलाइजेशन उसकी। I think this has been your best call all PSL. एक और कॉल भी थी मेरी। एक और भी कॉल थी तेरी। मुल्तान वाली मेरी कॉल थी। कौन सी? कि मुल्तान मुझे अच्छी नहीं लग रही। हाँ वही, वो तो एक प्रेडिक्शन है ना। मैं कह रहा हूँ कि तुमने you called for a change and that happened and then that paid dividends and then some. तो उस हिसाब से I feel like Saad Nasir the analyst has won over here. Yes. ये ठीक है। अच्छा,
सजेशन चाहिए हो तो बता दे या अच्छा बाकी बॉलर्स पे आओ यार एक सेकंड स्कोर कार्ड खोलने दो भाई क्योंकि 5 for 33 तो राणा जी ने ले लिया बट ही वाजंट द ओनली Khurram परफॉर्मर Shahzad was really good man, really good. 3 overs 9 runs 2 wickets. सो एन इकोनॉमी ऑफ 3 गेट्स 2 विकेट्स इन 3 ओवर्स और मैं बता रहा हूं जिस लेवल की लेट स्विंग मिल रही थी खुर्रम शहजाद को बॉल आउटसाइड एज के बाद भी मूव कर कीपर के हाथ में जा रही थी तुम्हें याद होगा TKC tried to come down the track to negate that swing. या वो भी नहीं हो रही थी. नहीं हो रही थी एंड ही इज लुकिंग फिटर दैट्स अ गुड साइन यार इसका ये इशू इंजरी प्रोन है ये injury prone रिदम में नजर आ रहा है खुर्रम शहजाद ठीक है really good test bowler है. यार ऑनेस्टली यहाँ पे इस डेक पे तो चाहिए भी टेस्ट मैच लेंथ्स ठीक है आई थिंक तो इसीलिए ये दोनों सबसे सक्सेसफुल थे ना इस पिच पे. हाँ वो भी और दूसरा अगेन आई विल डॉफ माई हैट टू क्वेटा's मैनेजमेंट फॉर ट्रस्टिंग हिम यार पेस हैवी अटैक साथ गए हो खुर्रम शहजाद को वो रिस्पांसिबिलिटी दी है ये बहुत आपने अक्लमंद हरकत की है हम सब वैज जूनियर को डालना तो चाह रहे थे नो वन वाज रियली टॉकिंग अबाउट खुर्रम शहजाद सो दैट दे डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट हीप्स ऑफ क्रेडिट एंड 3 overs 2 for 9 इज इनसेन कमाल. या मतलब लग ही नहीं रही थी. राणा जी को चलो थोड़ी पिटी है खुर्रम शहजाद तो अनप्लेएबल हुआ अनप्लेएबल था. या और 7 2 विकेट भी ले गया उसके बाद फिर मोहम्मद अमीर he was really good. Yeah. 1 for 18 and 3. अब वो वन जो है वही एक 2-3 विकेटों के बराबर है आमिर के लिए गॉड बाबर आजम वंस अगेन brought out an animated celebration Viv was ecstatic once again but उस तरह का नहीं विव ने बोला था calm down. आज थोड़ा ना इजी हुआ था Viv. calm down. ठीक Yeah, ज्यादा है झड़प्पे नहीं मार रहा था अब जरूरत नहीं थी ना वो वाली गेम बड़ी एक्साइटिंग थी bro. Exactly. But no, Mohammad Amir, after some shitty games in between, has come back into form. क्या 2 for 26 था पिछली गेम में, अब 3 overs 1 for 18. Good job. So out of the 3 games he's been good in 3. Out Yes. of the 6 games he's been good in 3. 5 Jani. He's had 2 bad games. Oh, that's been हाँ तो और क्या थे He has obliterated Peshawar. He did really well. against Peshawar in the first match. नहीं वही ना 2 मैचेस में पेशावर के खिलाफ चले हाँ. और एक पिछला वाला किससे जीते थे ये लोग बिल्कुल मेरे ज़हन से कराची सो कराची और पेशावर के खिलाफ अच्छा रहा है ये बाकी जो 2 मैचेस खेले इसने उसमें पिटा है इसको बड़ी इक्वेशन ही चाहिए होती. कराची इज फॉर्मर फ्रेंचाइज Yeah. और पेशावर बाबर आजम नहीं, बाबर की विकेट तो ही इज ऑलवेज आएंग नहीं तो वही मैं कह यू रहा कैन हूँ सी इट इन हिज आईज जब when मोहम्मद आमिर turns it on he turns it on. And when he मुझे takes इससे it- इशू ये था कि ये दूसरे मैचेस में ना थोड़ा अपना 100% नहीं देता. है इसका ये सीन जब ये यार 100% पे होता है ना तो फिर अनप्लेएबल शिट. I don't think Mohammad Amir puts in an equal amount of effort in every game. I know this is pure conjecture, मगर लगता है ऐसे. just based on everything that I've watched from him, yeah, he always turns up when the occasion is big. Apart from that, super over, I suppose. तब मरवा गया था. मुझे लगता है ज्यादा इजी ले रहा होगा USC है इसने क्या Suppose करना है, I don't मगर know. इतनी वाइडें करा गया था यार. That was poor. that But was anyway, poor. he's back in form, which augurs really well for Quetta. No. न्यू बॉल के साथ अगर राणा जी और मोहम्मद आमिर consistently अच्छी bowling कराते रहे तो honestly they can even be contenders और फिर- because this is a good bowling attack. It is one of the better bowling attacks in the entire PSL. फिर through the middle you've got Khurram Shahzad and Mohammad Wasim Jr. Yes, and sir. Abrar Ahmed. Now इन लोगों ने वापस कराची तो जाना नहीं है. पिंडी में शायद थोड़ा सा एक आधी मैच इनने खेलने मगर उसके लिए चैपर्स आ गया है. Chappers तो loves Pindi. Rawalpindi specialist, right? But anyway, good stuff by all the seamers. यार राणा जी 5 for 33, वो 2 for 9 ले गया 3 overs में खुर्रम और 1 for 18 in 3 overs आमिर. Vaz Jr. 1 for 21 and 3. नहीं 3 नहीं 4. 3. अच्छा 3 में ही था. यार वैज जूनियर की एक और विकेट होनी चाहिए थी. हाँ. तल्लत वाला इससे जो ड्रॉप किया ना Yeah. he did all the hard work. हाँ. And then he He fluffed dropped it. it, yeah. वो आउट होना चाहिए था. 1 for 21 are not like as good figures as The when he rest of bowled. them? नहीं अच्छा. इसने बॉलिंग इससे बेहतर ही कराई है. हाँ Vaz बॉलिंग तो Junior. बहुत अच्छी करी. Yeah. And पता और है दोनों मैचेस इनकी रोल क्लैरिटी बड़ी सॉलिड हो गई हुई है सीमर्स की. होना Yeah. ही चाहिए ना. मैं बिल्कुल. जिन चीजों पे बोलता हूँ कि यार रोल्स के अकॉर्डिंगली चलो. जहां पे क्वेटा की They've जो got- बैटिंग है वहां पे you're kind of mixing and matching. यहाँ पे they've got their roles in their head कि क्या करना है. Completely ironed out. Bowling attack checks out and then some. और फिर अबरार को थोड़ी सी पड़ गई थी 1 for 30 and 3. Yeah, चलो Abrar has been having a lot of good games as well. I would लास्ट मैच कराची वाले में तो Exactly. खेला ही नहीं जा. 1 for 15 था 4 overs में. I would not pay too much heed to this performance Abrar की. You continue to play him. Yeah. अब तो celebration भी change हो गई है. अच्छा जी बैटर्स पे आ जाएं. Yeah. यार, can we just talk about Finn Allen a bit? मुझे लग रहा था 100 मार देगा. 31 पे पहुंचा. क्यों लग रहा था 100 मार देगा? 31 of 16, but the way he was attacking Peshawar's bowlers, I honestly thought today is his day.
100 क्यों मार देगा? इसने वैसे ये क्यों थॉट आई तुम्हें? आते सार इसने वो स्कूप दिया हाँ। छक्के के लिए. Then he had a square drive, a straight pull for 6. वो तो मारता है. Yeah, बड़ा खूबसूरत वो मारता है. He was lofting the ball over backward point and over mid on as well. There was a tickle to find leg. He looked in sublime form. 31 runs में से इसके कोई 28 runs boundaries में थे. ऐसा ही था. और जो 67 for 1 क्वेटा के थे ना पावर प्ले में, वो फिन एलन की वजह से. 16 बॉलों में तो 31 फिन एलन के थे. और भी लोगों ने मारा है. राइली ने भी आकर मारा है. राइली ने भी आके अच्छा खासा मारा. 27 of 18. That's net positive, you'd have to say. नेट नेगेटिव मेरे लिहाज से जो है ना, साउथ शकील? नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन साउथ hasn't been too impressive. No. As an opener. South has been a bit too slow. He was actually quicker last year. 32 of 26. और पता है ठीक है इसने 2 बड़े खूबसूरत चौके मारे थे. पॉइंट के थ्रू ड्राइव्स थी. But yeah, I mean, South Shakil, you've got to play faster than that. He has to play faster than that. Yeah. He's been really good as a captain though. Out हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं. यार इसकी कैप्टनसी इंप्रेसिव लगी है, बैटिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं, कैप्टनसी तो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है, especially when he brings himself on. And he's managed his bowlers really well. Honestly, he has an easy sort of bowling attack to manage also. ये भी बात करने की जिक्र है. But every time he's brought himself on, it's kind of worked for Quetta. The batting needs to improve. It needs to improve. और पता है रन्स आए ना आए, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट का डेंट मत मार कर जाओ. 33 of what? 32 of 26. 32 of 26 and 123 का strike you rate. were playing in the power play जिसमें 67 for 1 थी क्वेटा. ये भी तो जहाँ पे सोचो, फिन एलन मार रहा था. अगर तो साउथ शकील ने थोड़ा तेज खेला होता तो यहाँ पे क्या 75-80 रन बन जाते पावर प्ले में. So these are small areas where if you improve your team could win more games. अच्छा, ओवरऑल अगर बैटिंग परफॉर्मेंस देखें ना, आई डोंट थिंक फिन एलन के अलावा किसी ने उस तरह का डैमेज कॉज किया है. मेरे लिहाज से तो इस पिच पे थोड़ा ये संभल के खेल रहे थे. मुझे समझ नहीं आ रही थी नहीं, राइली ने भी काफी मारा है शुरू में आके, और फिन एलन तो खैर लुक फिन एलन ही वाज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच दोनों टीमों में. He also needed this knock, सादी. एक अच्छी 50 मारी थी इसने पहले मैच. उसके बाद ये फेल होता जा रहा था. अब this confidence, or sorry, this knock will give him a lot of confidence. I feel like we've got a few, or couple at least, Finn Allen knocks in store. और किसने क्या किया? Kusal Mendes scored 32 of 27 और Chappers was 33 of 26. चलो चैपमैन तो अभी आया, उसको मैं थोड़ी लीवे दूंगा. 33 of 26. कुशल मेंडिस की यार थोड़ी अनकैरेक्टरिस्टिक नॉक है ये. He was batting a lot quicker in previous games. पता नहीं क्या, probably pitch की वजह से था या Peshawar bowled well. नहीं, Peshawar did amazingly well to bring Quetta back. But I don't think वो flow में थे कोई भी बैटर. 67 for 1 अगर आपने पावर प्ले में किया हो, to end up with 178 is not a good effort actually. Not at all. ठीक है. और एक चीज मैं ये बोलूंगा कि Quetta kind of nailed the whole template of everyone contributing. You know, you don't see a single score over 33. हाँ, लेकिन contributing in the scorecard, not in the strike rate वाला. Another day, another team, or maybe another day, same team, you would have lost this game. Bowling attack आपका इतना शानदार है कि it bailed you out, वरना बैटिंग ने मरवाया थोड़ा सा, if I'm being real. वो एक अलग बात है ना कि आपका बॉलिंग अटैक तो फिट है, लेकिन पेशावर की बैटिंग ही फॉर्म में नहीं है. ऊपर से यार वी स्पीक ऑफ राइली, राइट? एक उसका चौका वो सूफी मैक वाली मिसफील्ड पे था, अगर तुम्हें याद हो. रिमेंबर? वो बिल्कुल उसके पाँव के बीच में से गई है. फिर वो कैचिंग अपॉर्चुनिटी जो मिस हुई है वो भी राइली की थी, राइट? एंड देन he was cleaned up later on 27. 4 पे वो कैचिंग अपॉर्चुनिटी आई थी. तो मतलब whilst he was probably their second best performer with the bat, थोड़ा सा fortunate knock वो भी था. A better fielding effort from Peshawar would have probably changed things. राइली जल्दी आउट होता. Who knows? यार Quetta will manage to obviously qualify now for नहीं, obvious नहीं है यार. 5 में से अगर 3 जीत गए. देखो, they've played Peshawar twice. तो they have to play Islamabad twice. But लाहौर में उनके कितने 3 मैचेस हैं अभी. Yes. 2 पिंडी में है ना. They'll probably do good. Wait, who is their match against? लाहौर में ही है उनका. लाहौर कलंदर से खिलाफ पिंडी में मैच है. Yes, वो उनकी एक होम गेम पिंडी में है. So weird. Yeah, but I feel like I think they've qualified. I don't think they've qualified, but I feel like 4th तो आ ही जाएंगे. नहीं, I think जो इस वक्त top 4 है ना, the more or less they'll be the top 4. Even if the batting order has issues and at times doesn't make sense at all, there is enough quality in there. Enough quality कि individual brilliance ही बैटिंग में आपको कुछ ना कुछ दिन bail out करेगी, और bowling attack is solid. So that's why I feel like Quetta should kind of eke out a playoff spot. Yeah. हाँ, पेशावर और मुल्तान का ही डाउट है. Yeah. I think जो अभी टॉप 4 है probably वो, unless Karachi go on a bad run. Yeah, that is also that could happen. That could really anything could happen. Literally. और मतलब अगर कराची ज्यादा losing streak पे चलेगी या क्वेटा भी losing streak पे चली गई, चीजें बदल सकती हैं. I feel like
there could be a situation as well in which 4 wins out of 10 gets a team into the playoffs. 4 wins. हो भी सकता है अगर 8 सब point देखो पे- इस्लामाबाद 10 के 10 जीत गई अगर 8 पॉइंट पे मसला है ना, फिर तो मजा नहीं आएगा फिर यार। अच्छा नहीं होगा, लाइक मुझे इट विल बी मेरा पेट पीव मजा नहीं आएगा। मेरी सड़ जाएगी थोड़ी सी कि यार मतलब नॉट इवन 50% रिकॉर्ड एंड यू मेड इट टू द प्लेऑफ्स. No. बट पॉइंट इज कि क्वेटा हैव द मोमेंटम, दे नाउ नो व्हाट दिस लाहौर सर्फेस इज लाइक, सो दे विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. उनका होम ग्राउंड भी है ये इस सीजन. And let's suppose they lose both games against Islamabad, hypothetically. Even though कोई guarantee तो नहीं जीत भी सकते हैं, दोनों ही जीत सकते हैं, ठीक है? But let's say they've lost those. That means that they have 3 games and they need to win 2. And you'd think कि यार ये जीत ही जाएंगे 2 और. हाँ, जीत समझ रहे जाएगा। ओवरऑल अगर 5 में से आपने 2 जीतनी है ना, Oh, actually, Sadi, they've played Karachi twice as well. So Quetta have played 5 games. They've two played Peshawar twice and Karachi twice. That's weird. That is weird. So they haven't played 2 teams entirely. अच्छा, they need to win 2 out of 5 I think to make it to मुल्तान को नहीं खेले ये मुल्तान के साथ तो कल है। और उसको भी नहीं खेले, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को भी नहीं खेले. ये सीन चल रहा है और लाहौर के साथ एक और मैच है. So weird. That is really weird, man. And honestly, एकदम से जब मैंने I've said this out loud, I don't know anymore. नहीं they'll make it. मसला ये है, मुझे एक तो 8 दिन वो बीच पे खेले नहीं, हाँ. और उससे पहले और उसके बाद जो खेले हैं वो 3 टीमों के खिलाफ खेलने, कैसी स्केड्यूलिंग। But khair, again, because the bowling attack checks out and because they've got supreme quality in amongst their batters, ठीक है, एक आधा चलने की देर होती है और आप मैच जीत जाते हो. अभी तो चैपमन नहीं चला, चैपर्स जब चलेगा ना जो हमारा जानी है, फिर देखना तुम. जानी हो तो पॉडकास्ट तो आप लोग भी बन सकते हैं, जहाँ Yes, पे sir. जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बिराम और मेरे से बातें कर सकते हैं, पीएसएल प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं, जो कि क्या सीन है उसका, हुआ है करना है एक्सेल वाली चीज में करना पे होता है करना है अभी वापस, वो रिमाइंडर देता होता शेप. याद नहीं है मुझे. खैर आईपीएल प्रेडिक्टर भी है और भी काफी ज्यादा फन एंड गेम्स एंड ऑल ऑफ दैट है. ऑल्सो आप वैसे भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. डिस्कॉर्ड इज फ्री टू ज्वाइन, कोई भी कर सकता है, लेकिन जानी ऑफ द पॉडकास्ट जो है वो करने के लिए 2-3 तरीके हैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बोला ही नहीं जा रहा. साद और मेरे से अगर आपने एक्सक्लूसिवली बात करी ना, एक्सक्लूसिव सिव 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 पेट्रियन के थ्रू कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लें. इजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर फॉर दैट. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा. और क्या क्या तरीके हैं बिराम? Yeah, so if you live under a rock and don't have online banking in 2025, we've still got you covered. Saad and I, we live in Islamabad and our office and studio is situated in E113 Markaz in Islamabad. So come seek us out. और मुंह पे मारे 1500 रुपए हमारे. And per 1500 payment, we will make you a Jani of the podcast for 1 month. There are other ways as well. You can gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey. The only condition, of course, is that it should be authentic and not a knockoff. बाकी कोई भी sport हो, कोई भी team हो, international, domestic, does not matter. Per jersey or authentic sports jersey, you will be a Jani of the podcast or will be made a Jani of the podcast for 6 months, which might turn out to be a better deal for you. Baki yaar, as you all know, Saad and I are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. ये सनसनीखेज, मसालेदार खबरें, sensationalism, इस सब से दूर जाना चाह रहे हैं हम. We are trying to promote intelligent sports/cricket discourse, and it's also an inclusive community. Everyone's welcome. और तमीज के दायरे में बात होती है, बहुत मजा आता है. वरुण भी है, मानू भी है. Come through, become a Jani. अच्छा जी, आ जाते हैं मुल्तान वर्सेस लाहौर पे. मुल्तान तान तान, मुल्तान तान तान, मुल्तान तान. क्या ही बोलना है यार. मुझे सबसे पहले बताओ, अगर आपके 3 आउट है और आप 185 पे जा रहे हो ना, तो आप Yeah. मैच हार गए हो मेरी नजरों में, Honestly, तो yeah, एटलीस्ट. Yep. And What is whilst this? I agree that Multan are in this position, 5 losses out of 6, is it? Because their fielding has been dog Oh shit my God. and their bowling has been poor. Let's not forget that they miss opportunities up front as well with the bat. And Mohammad Rizwan has had a few of these games now. Few of these क्या है, दो इनिंग्स थी जिसमें वो तेज खेला. आपस की बात है, even with 186 on the board, the fact that Lahore beat Multan by 5 wickets with an over to spare, मेरे तो ख्याल से वो भी बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि मैं देख रहा था जॉश लिटल क्या बॉलिंग करा रहे जब वापस आया था. You're feeding their hips and their legs. It was poor. But then again, you cannot escape the fact either कि sometimes they really lose the advantage in the power play. हमेशा नहीं होता, मगर हो जाता है. हमेशा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जरूर होता है. और फिर रिजवान आकर ये क्या उसने स्टेटमेंट दी है कि 160-165 भी इनफ होना था, मगर अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे तो फिर तो 250 भी चेस हो जाएगा. दैट्स अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट. सबसे पहले तो 160 to 165 प्रॉब्ली इनफ नहीं होना था. और 185 जब इनफ नहीं है,
क्योंकि 3 आउट हुए में यार आपने मैक्सिमम यूज ही नहीं किया अपने बैटर्स का, या अपनी बैटिंग का। क्या ये क्या है? 76 ऑफ 48 लुक्स गुड, 158 का स्ट्राइक रेट, ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं किया। नहीं, और किसी ने ये भी लिखा हुआ था हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में, नॉट जानीज चैट, किसी ने स्टैट्स निकाले हुए थे साहिबजादा फरहान और रिजवान के, और वो कंपैरिजन दे रहा था कि यार कंपेरेबल स्टैट्स हैं, 160 समथिंग का साहिबजादा का है और 150 समथिंग का रिजवान का है। व्हाट those stats don't tell you is that sometimes or a few times actually Rizwan has catch up knocks, and this was no different. ये बिल्कुल वही चीज थी यार। वरुण ने काफी नंबर्स भेजे हुए थे हमें इसके ऊपर। सबसे पहला नंबर तो यही था कि रिजवान्स इम्पैक्ट goes past 0 around the 42. And Rizwan gets his 50 of 41 deliveries. Yes. So for the first time that Rizwan has a positive impact on the game, it is after he gets to 50. So if he gets out before that, it is net negative, Sadi. ठीक है, माना यार 41 बॉल 50 थी, you end up with 76 of 48 unbeaten. वहां पे जाकर आप पार नॉक कह दो मेरी तरफ से। रिजवान की इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? His strike rate at the death is amazing. Yeah, 300 something, right? 304 Yeah. डेथ में उसका स्ट्राइक रेट। शुरू में 135 शुरू में 135 है पावर प्ले में, that's still low for power play. और मिडिल ओवर्स में 125। And that's also because he really slows down versus spin. Varun pointed this out as well for us. वो बताओ जरा आवाम को। स्पिन का स्प्लिट अगर मैं बताऊं आपको तो एक सेकंड, सॉरी। हाँ, Basically, यार Rizwan is attacking like 13% of balls that he faces versus spin, right? सो यार Is इसमें it सारी वो स्प्लिट Is it 13% or 14%? spin slows him down in the power play, 81 in the power play against spin Yeah. strike rate, और 121 in the middle overs, Yeah, जहां पे वो पेस के अगेंस्ट इन द मिडिल ओवर स्ट्राइक कर रहा है 130 पे, yeah, और इन द पावर प्ले वो स्ट्राइक कर रहा है 146 पे। okay. पेस के अगेंस्ट 146 इन द पावर प्ले और स्पिन के अगेंस्ट 81 इन द पावर प्ले। तो But there was another stat that Varun gave over here कि Rizwan is attacking very few deliveries that he faces versus spin. हाँ, only 13%। Yeah, so 13% of the deliveries that Rizwan faces versus that specific bowling type, yeah, slow bowling, spin bowling, he's only like, क्या, out of every 100 deliveries, 13 deliveries पे वो attack कर रहा है। मजे की मैं बात बताऊं, इससे लो अटैकिंग शॉट्स वर्सेस स्पिन सिर्फ 4 बंदों की हैं। अच्छा, सॉरी 3 बंदों की। Okay. He's at number 4. That's Rana Fahim, okay, yeah, that makes sense. इरफान नियाजी That also makes sense. एंड बाबा आजम। ओ लो भाई, बाबा आजम यहाँ पे भी रिजवान से जीत रहे हैं और यहाँ हार रहे हैं यार। और अटैकिंग शॉट परसेंटेज जो एवरेज है ना वो 24% होती है। So if you are attacking 1/4 of your balls versus spin in modern day T20s, you are That's average. average. Elite levels आते हैं फिर 35 to 40%, right? चलो वो तो एलीट हो जाते वो हैं ना, elite हो जाते हैं। Heinrich Klaassens and Nicholas Purans, हाँ। yeah. Shreya Sayers maybe these days. पता नहीं, उसका Yeah, पता नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं अभी पता। But point is यार पाटीदार कि में भी आई डोंट नो। like you know, ठीक है, एंड में स्कोर कार्ड लोग देखेंगे बोलेंगे वो 76 नॉट आउट ऑफ 48, दैट वाज अ गुड नॉक। नहीं, यार आप पहले आउट हो जाते ना, 41 बॉल 50 से पहले आउट हो जाते तो पता नहीं क्या होना था। आपस की बात है, आप 50 करते के साथ ही आउट हो जाते तो फिर तब भी बड़ा गंदा नॉक था। 50 और 42 होता फिर। यार मैंने ना इसका नॉक और भी ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। एक तो तुमने तो नंबर्स दिए ना, आई वांट टू बैक दैट अप विद व्हाट ही डिड इन दिस नॉक ओवरऑल। रिजवान वाज 11 of 17 इन द पावर प्ले एंड हैड नॉट स्कोर्ड अ सिंगल बाउंड्री। यस। That's crazy. उसके बाद 11 of 17 पे जब था ना, he cut the ball away for 4 to score his first boundary. और वहां से लेकर 49th रन तक, ठीक है, 15 of 18 से लेकर 49th रन तक, there was a paddle sweep for 4, there was one big hack over mid wicket for 6, ठीक है, और एक इसने टॉप एज पे चौका मारा था। That's it. साथी, that is it. Yeah. 50 तक पहुंचने पे, ठीक है। मतलब एक वो छक्के वाली शॉट पे इसने थोड़ा इंटेंट दिखाया, पैडल स्वीप पे थोड़ी इसने अकलमंदी दिखाई, और कट इसको मिल गया तो उसने मार दिया। क्या यार? हाँ ठीक है, once he gets to 50, you've got your pokes to the offside and those leg side whacks, ठीक है, वो slog sweep हो या pull हो या wait जो भी क्यों हो, करना है? स्वाइपें हो इसकी। वेट क्यों करना है जब आप अभी पीछे इफ्तिखार अहमद और माइकल ब्रेसवेल पड़े थे जिनको बारी नहीं मिली, आगे Yeah. सिर्फ 3 आउट थे, बिल्कुल। और इनका यही फिर मसला आ गया ना, वो गलबेस इफेक्ट। पीछे ये 2 बंदे थे सिर्फ। नहीं मगर यार उसके बावजूद तुम मुझे एक चीज समझाओ, if he is striking at
300 plus at the death. और ये कैचअप नॉक को कैचअप नॉक जस्टिफाई कर रहा है, and he's ending up with a par knock. ठीक है, मेरे ख्याल से 76 unbeaten और 48 is par. हाँ. Right? मैं उसको At the end of the day, I know Varun called it net positive. I am not calling it net positive. ठीक है, क्योंकि हमने पूरा फेज देखा है ना. हाँ. Once you come as an opener, मेरा मसला सिर्फ ये है बेराम, जब सिर्फ 3 आउट है ना, तो आपने यूटिलाइज नहीं किया पूरी नहीं अपनी किया bat. आपने यार. दूसरी मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि clearly you do have the prowess to hit big. You've shown it to us once you've crossed 50. कुछ पुलें थी या स्लॉग स्वीपें थी जो बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की थी. 304 का अगर आपका स्ट्राइक रेट है डेथ में, तो ऑब्वियसली यू कैन हिट. तो फिर आप पहले क्यों नहीं कर रहे? 304 नहीं, उसका हाफ पे क्यों नहीं चल रहे मिडिल ओवर्स में? या पावर प्ले में यार चलो 200 की ट्राई कर लो. 200 चलो थोड़ा ज्यादा है. शुरू हमने बीच बीच में बाबर को भी देखा शुरू में जब कोशिश कर रहा था वो. 170 ही कर ले यार, मैं तो ये कह रहा हूँ. और फिर यार एंड में आप कह रहे हो कि ओ मेरा तो 150 160 का स्ट्राइक रेट है. यार आप अपने फेज वाइज प्ले को देखो. जिन दिनों आपका कैचअप नॉक कंप्लीट नहीं होगा उन दिनों आपने टीम को बिल्कुल मरवा दिया. और इस मैच में तो यू कैन मेक अ केस के वैसे ही मरवा दिया. ठीक है, 185 wasn't enough. 15 more runs you could have had a final over in this game, हाँ. right? हाँ. Who could say कि वो किस तरफ जाता? हाँ. Yeah, I don't know man. Poor. And I'm agreeing कि यार मुल्तान की ज्यादा बिगर इश्यूज उनकी बॉलिंग और फील्डिंग है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है. I'm not too sure about that, man. रिजवान काफी बड़ा इशू है यार. I don't know Some about days that. he's done well, but most days he hasn't. I mean, You've seen 2 catch-up knocks now, right? इशू है विराम, तुम कह रहे हो इनकी बैटिंग का इशू है. नहीं इशू तो है जाहिर है. वैसे why did Shea Hope come back into the lineup? I don't know. Ashton Turner, hello anyone? Like मुझे what was up with that? मुझे नहीं पता क्या. मुझे कहना. कुछ समझ नहीं आई इस चीज की. मुझे मुल्तान की इस सीजन नहीं समझ आ रही क्या हो क्या रहा है. ऐसे तो नहीं थे. नहीं बिल्कुल भी नहीं. I don't know क्या किया उन्होंने. या और ठीक है आप टॉस हार गए हो. इट इज अ बैड टॉस टू लूज बिकॉज आपको पता है कि यार पहली इनिंग्स में बैटिंग ना पावर प्ले में थोड़ी मुश्किल है. बट देन अगेन यू हैड रन्स ऑन द बोर्ड. You didn't. But at that point when didn't. Ubaid Shah takes 2 wickets in an over, wow. I thought that was a turning point and Multan should have won it from there. Still the runs weren't enough. मैं तो यही बोलूँगा. बॉलिंग को क्या वो अब बोलूँ? आप जाहिर है जब रिजवान का नॉक देखो तो आप you're forced to think that way. मैं अगर एक कैप्टन हूँ ना किसी टीम का और मैं कहूँ यार ऑपोजिशन वी कैन रिस्ट्रिक्ट देम टू 185 ऑन एनी सरफेस, आई टेक दैट. आजकल की T20 में अच्छा आई टेक दैट. बोनस ये है कि मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी. 3 आउट हुए, उन्होंने खुद ही रन नहीं किए. Absolutely. और मैंने बॉगी भी मारी कि मैंने डैरिल मिचेल को 4 ओवर दिए. In no world or in no alternate universe either should Daryl Mitchell be bowling 4 overs in a T20. We'll come to that. लाहौर पे आते हैं. अभी मैं मुल्तान की बात करना I take that any day of the week. Let's look at their changes for a second. Okay, Usama Mir goes out, makes sense. Pace heavy जाओ इस तरह की surface पे. Usama Mir was having a terrible PSL. Platinum हो जो भी हो निकालो, ठीक हूँ. I'm fine with that. हसनैन या आकिफ हसनैन को लाए हो आप. You got rid of Chris Jordan as well. और आप तैयब ताहिर को निकाला आपने, ठीक है. मैं भी समझता हूँ कि तैयब और कामी जी को एक टीम में नहीं होना चाहिए. यार एस्टन टर्नर को लाना था ना. शे होप किधर आ गया वापस? तैयब को निकाल दिया, ठीक है, सही है. लाए क्यों थे? हाँ क्या I don't know. पता नहीं उसको क्या तुक बनती थी एक मैच देने की भी. I don't think कोई डेटा ये सजेस्ट करता होगा bro. नहीं और मुझे तो ये समझ नहीं आई कि या तो होता ना कि साथी ओ यार मिडिल ऑर्डर बैट्स थे नहीं. हाँ. था एस्टन टर्नर. बिल्कुल था. You didn't need Shea Hope, right? And Shea Hope hadn't been performing. If anyone, आप एस्टन टर्नर को एक और गेम देखकर देखते हो. बीच में जो एक मैच में उसने रिशाद हुसैन को टेक डाउन किया था, ठीक है आउट हो गया था, मगर उसने 15 रन बनाए थे. टेक डाउन तो किया था. उसने आपको दिखाया था कि मैं कर सकता हूँ ये. यार पता नहीं कुछ समझ नहीं आई वो क्यों नहीं खेला. पता नहीं. इट मेड नो सेंस. हाँ मैं ये मानता हूँ कि यार पेस हैवी गए, आकिफ हसनैन को वापस लाए, जॉर्डन विली नहीं चल रहे, आई एम फाइन. उसामा निकाला, फाइन विद एवरीथिंग. बट डू यू थिंक जॉश लिटिल, उबैद शाह, आकिफ जावेद, मोहम्मद हसनैन ये होना चाहिए था? आई फील लिटिल की जगह आज विली होना चाहिए था. या मतलब इस मैच में होना चाहिए था. बैटिंग बहुत इनकी जो लाइट हो गई थी. या बैटिंग थोड़ी लाइट हो गई थी. तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है. मतलब इफ्ती और ब्रेसवेल के बाद फुल स्टॉप है, आगे कोई भी नहीं है. थिंग इज कुछ मैचेस हमने देखा कि दे गो इन विद 1 न्यू बॉल सीमर. फिर कुछ और मैचेस में हमने देखा कि 3 ऑप्शंस लेकर आ जाते हैं. सो दिस इज, लेकिन दे डोंट कंसीडर आकिफ जावेद एज अ न्यू बॉल. they don't give him the new ball either. And I know like it's a popular opinion or well unpopular, I don't know, I haven't done the survey, but कुछ लोगों का मानना है कि आकिफ is better as first change. कुछ लोगों का मानना है तो नई बॉल सब बेहतर है. मेरे ख्याल से if he fixes his wides and no ball problem, he could even be all phase. He has the potential to be all phase. Potential तो है काफी कुछ, मगर अभी तो खैर काफी पिट है. All I'm saying is कि यार even when you're making changes, you have to look at the composition of both your batting and bowling lineups, and they didn't quite make sense, especially
fitting Shea Hope in. Shea Hope का That made no sense मुझे to नहीं me. समझ आई. बिल्कुल जीरो समझ रही है मुझे या और बाकी यार अगर तो इस वाले मैच में देखा जाए जो ये लाहौर और मुल्तान का हुआ था देयर वर मोर डिग्रीज ऑफ स्विंग इवन आई फील यस्टरडे द क्वेटा गेम swing ज़्यादा होती 1.6 degrees of swing in the Multan game versus Lahore compared to 1.1 degrees before जो 2 मैचेस में हुई थी ठीक है और फिर we all know कि बॉल was keeping low उस दिन उतनी उठ नहीं रही थी ठीक है राणा फहूम वाले डे पे क्वेटा पेशावर में बॉल जरा ज्यादा उठी है राणा फहूम था वो उसने मगर बोला बॉल उठे हाँ बिल्कुल वो चक नॉरिस वाला सीन है ना बट इफ आई लुक एट मुल्तान लाहौर यार बॉल ज्यादा बैठी है सादी उस मैच में पता है Either way, हमारे प्लेयर्स को तो चाहिए होती है लो बाउंस. I'm not too फिर भी नहीं convinced. किया कुछ. I'm not too convinced with the tinkering. I do not understand why they didn't go for Ashton Turner. और bowling में आप कुछ बेहतर combination बना ही सकते हो यार I इससे. don't know man. Yeah, like मुझे कोई feels नहीं आ रही मुल्तान से इस सीजन. Especially after this batting performance. Although Kami G 52 of 31 कर गए. yeah. And still 52 of आते हैं 31 उनकी- is good. करते हैं उसके बाद यार point is यार it's a big downer not just for like Multan fans but even for people who cover the tournament because this is a team which is so consistent or has been so consistent for 4 seasons and when they shit the bed like that it's not like it doesn't make for great viewing yaar for all intents and purposes Multan now need to win all 4 remaining games if they don't win all 4 remaining games I don't think they can qualify for the playoffs I think it's over If they win 3 out of 4 that takes them to 8 points right? yeah I don't think that's enough. no I don't think that's enough at all Karachi's at 6, Lahore's at 6 and Queta's at 6 right? yes मुश्किल है. They need to win all 4. काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे बात तुमने की कामी जी की Kami G! कामी जी की थोड़ी तारीफ बनती है साहब 52 of 31. कामी जी हमारे जानी है 4 छक्कियां ठीक मार दी है उन्होंने. या आई मीन लुक कामी जी का ये तो हमें पता ही है सादी के ही ओब्लिटरेट स्पिन बॉलिंग राइट यार हाँ पता है मुझे. या लेकिन पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस बैटिंग लाइनअप को मैं देखता हूँ ना कामी जी ने बचा लिया थोड़ा सा. यार कामी जी देखो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं हाँ. कामी जी से कट करवा लो पेस हो या स्पिन हो कट सॉलिड है कामी जी से पुल करवा लो पेस हो या स्पिन हो वो भी सॉलिड है एक बल्कि हारिस रऊफ को पुल पे छक्का दिया था कुत्ता किस्म का ठीक है और उनकी भी जरा बैटल है इफ यू रिमेंबर सम ओल्ड लाहौर कलंदर्स डेज स्टंट भी पड़ी थी. चिकी थी एक हारिस रऊफ ने कामी जी को बाकी कामी जी यार ही यूजेस हिज फीट रियली वेल वर्सेस स्पिन गोज डाउन द ग्राउंड यू नो कदमों का इस्तेमाल कर गोज बिग डाउन टाउन ये उनकी सारी स्ट्रेंथ्स हैं ठीक है स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स कट हो या पुल हो या स्पिनर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल समझ आ गई. बट टू दैट पॉइंट do they use him in the correct phases always यही तो मुझे मसला. I don't think they do No. इस मैच में चलो आ गया वो सही टाइम पे क्या वो कंसिस्टेंटली सीजन के थ्रू आउट यूज हुआ है सही तरीके से हुआ. मुझे तो नहीं लगता हुआ पूरी बैटिंग यूनिट नहीं इनकी सही तरह यूज हुई. नहीं एक दफा इफ्ती का अच्छा यूज कर लिया था इन्होंने. ब्रेसवेल का 1-2 दफा अच्छा यूज किया. अब अगर तो आपने एस्टन टर्नर खिलाया होता कामी जी आते शेहोप वाले स्पॉट पे कामी जी को थोड़ी ज्यादा स्पिन भी मिल जाती ठीक है और शेहोप की जगह एस्टन टर्नर आता फिर. शेहोप की जगह हाँ एक स्पॉट नीचे एस्टन टर्नर आता उसके बाद इफ्ती मेनिया ब्रेसवेल एंड ऑफ फायर पावर सो आई जस्ट थिंक दे हैवंट यूज्ड देयर रिसोर्सेज ऑप्टिमली एट ऑल ना No? जीरो. शेहोप की मुझे अभी समझ नहीं आ रही क्यों का क्या किस तरह कब अच्छा फिर और कोई होता है कैसे. नहीं यही क्या कौन कैसे किधर किधर? तू किधर है ओ बाय द वे व्हिच रिमाइंड्स मी एक और पॉडकास्ट भी तुमने ड्रॉप करना है कर देंगे यार अभी टाइम नहीं है उसका. एनीवे आ जाओ फिर थोड़ा बॉलिंग से पहले ना इनकी फील्डिंग पे आ जाओ क्या नहीं क्या फिर से ड्रॉप कैचेस अब्दुल्ला शफीक वाज ड्रॉप्ड ऑन 20 बाय यासिर My खान God. इट वाज अ डॉली पकड़ना चाहिए था ब्रेसवेल हैड हाफ अ चांस टू डिसमिस डैरल मिचेल ऑन 38 वैसे तो व्हेन ही इज इन न्यूजीलैंड शर्ट वो पकड़ लेता है यहाँ पे नहीं पकड़ा जाता यू कुड सी द एंग्विश ऑन मुल्तान्स कोचिंग स्टाफ्स फेस व्हेन दे वर ड्रॉपिंग दोस कैचेस मतलब टोपियां गिर रही हैं इस तरह देयर हाइडिंग देयर फेस एंड एवरीथिंग यार ये मसला होता है ना जब आप अनाउंस कर दो ना टूर्नामेंट से पहले कि हम बेस्ट फील्डिंग टीम बनेंगे. आई थिंक आप टीम पे भी प्रेशर डालो When it comes back to bite you in the ass, Yeah. तो ट्रोल भी होते हो और फिर लोग बातें भी because करते हैं. it's not just the fact कि मुल्तान यार is fielding poorly. I would go on to say Multan have been the worst fielding team in the entire competition. 100%. Yeah, 100%. And I know Will Linton is such a nice dude. We actually recorded a podcast with him as जाके well. देख लो. But I don't think he would be too impressed with all of this. Obviously he उसकी won't be. जो हम नहीं impress हो रहे तो कोच क्यों impress होगा? notes वाली book होगी वो तो भरी पड़ी होगी यार. जब हम नहीं impress हो रहे तो कोच क्यों होगा? Yeah, this is really shoddy stuff in the field, and bar it comes to bite them back in the ass. And honestly, like I don't know.
I don't know. क्या ही मैं बोलूं? ना कुछ बोलने को है ही नहीं. मैं There's इसीलिए not बोल a single department in which they have exceeded expectations or anything. यासिर खान ने आपको वो मैच जिताया जो आप एक जीते हो. रहा हूं. सोचा जाए तो. Yeah. यासिर की इनिंग्स निकाल दो तो who's to say उस दिन भी क्या होता, No. right? I mean things are looking pretty dire for Multan. I can't see them winning 4 out of 4. लेकिन एक जो है ना इस पूरी टीम में एक बंदा है जिसने इम्प्रेस किया. उबैद शाह. यस सर. Yeah, I liked it. I know he's gone for runs consistently. कितने पड़े हैं उसे? 34 रन्स पड़े, मगर यार बीच में थर्ड जो इसने ओवर कराया ना. He was their best bowler. Yeah, he comes and removes both of Abdullah Shafiq and Sam Billings in his third over. He gave away just 2 runs in that over, and that really should have been the turning point of the game. Should have been. I honestly feel वहां पे मुल्तान were ahead, बल्कि अलीजा's here, इसको याद होगा, इसने और मेरी अम्मी ने दोनों ने बोला कि यार लाहौर से ये नहीं होगा चेस. ठीक है, उस टाइम पे 66 रन चाहिए थे उनको 6 overs में. I was like यार I know थोड़ी विकेट्स गिरी हैं, but 11 and over isn't all too difficult either. But then they bowled so poorly that Lahore got there with an over to spare, right? Like आराम से जीते, वो सुकून से जीते, इनमें कोई टेंशन ही नहीं थी. मजे से जीते, मजे लेके जीते. क्या यार? मजू. Multan bad season for them. Bad season for them. How much did they score in the power play? I can't quite remember. I don't remember, bro. But उसमें भी रिजवान ने I think pretty much मरवाया था. बिल्कुल मरवाया. Yeah, so 39 for 1 is what Multan managed in the power play. 39 for 1, come on. If Rizwan is 11 of 17 without scoring a single boundary, I'm pinning this on him. अगर आपने 185 किए हैं और आपके पावर प्ले में सिर्फ 39 रन हैं, तो आपके तो 215 हो सकते थे यार. आराम से हो सकते थे. तो whilst we are being critical of the bowling and the fielding, this cannot be underscored either. I mean, और मुझे ज्यादा तब पता है क्या चढ़ी है जब मुल्तान उसकी हनीफ मोहम्मद कैप सेलिब्रेट कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया. नहीं समझ आई उसकी भाई. Bro, you're losing. Speaking of which, शाहीन अपना आईफोन लेकर आया हुआ था. दिखा रहा था सबको वो आईफोन. ये देख लो मेरा आईफोन ठीक है, इसको कोई चोट नहीं आई हुई. अच्छा, 39 for 1 ये पावर प्ले में थे, ठीक है. 10 over mark, 70 for 2. Right? Then they get to 116 for 3 and 15 overs and I'm like क्या कर रहे हो? उसके बाद इन लोगों ने बहुत मारा. वही ना, रिजवान का 304 का स्ट्राइक रेट. तब रिजवान का 304 का स्ट्राइक रेट आया and they end up with 185 for 3 and 30. Oh sorry, in 20. जिस रेट पे जा रहे थे शुरू में वो 30 में ही होना था वैसे. But करो ना मैच जरा. 69 runs for the loss of no wicket in the last 5 overs. And overall 10 ओवरों के बाद क्या बनता है? 115 runs for the loss of 1 wicket in the last 10 overs. So poor. Had you done better in the power play in the first 10 overs, you would have won this so game. poor. You would have 110% won this game. So poor. Even if Daryl Mitchell and Sikandar Raza butt went berserk, आपका मैच था ये. अच्छा, लाहौर की बात कर लें. नहीं इनकी मुझे बताओ जरा, बॉलिंग बताओ. यार बता दिए ना, मतलब जॉश लिटिल 1 for 43, आकिफ 1 for 44, ब्रेसवेल none for 33. क्या इनके ऊपर क्या डिटेल में जाना है? एक चीज मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा. टीम यही है, they've bowled shit. नहीं, जॉश लिटिल जो है ना, he started off really well. पहले 2 ओवरों में इसने 13 रन दिए और एक विकेट भी लिए. And then he gives away 30 runs in his last 2 overs and the lines that he bowled basically gave the game away यार. आप इस तरह टांगे या लेग्स को फीड नहीं कर सकते, हिप्स को फीड नहीं कर सकते टॉप क्वालिटी बैटर्स के. सो जहां पे रिजवान की तनकीद कर रहे हैं वहां पे जॉश लिटिल को भी तो थोड़ा सिंगल आउट करो कि वाज रियली रियली पुअर स्टफ. यार तुम तारीफ एक बंदे की करो, एक तो उबैद शाह की और दूसरा मोहम्मद हसनैन की. 1 for 30 in his 4. यार मोहम्मद हसनैन को अगर तुम वो ब्रेकडाउन देखो ना, मेरे पास पड़ा हुआ इसका ब्रेकडाउन यार. ही ओपनड द बॉलिंग व्हिच आई लाइक्ड. दो हसनैन को न्यू बॉल दो, ठीक है. एंड देन ही ओनली कंसीड्स 9 runs in his first 2 overs, comes back for his third over right after the power play and gets Fakhar on his first ball of his third over. ठीक है, थोड़ा एंड में पिट गया, बाद में 1 for 30 सा खत्म किया. 1 for 30 is good. बट तारीफ करो इस एफर्ट की, especially because they used him well. I mean 7.5 का अगर आपका बॉलर दे रहा है तो that's really really good. Honestly, yeah, I mean पावर प्ले में 2 overs में सिर्फ 9 रन खाए हैं, वो वाली चीज हमारी ठीक हो गई ना. फिर मेरे साथ कह रहे थे कि यार सैन को न्यू बॉल दो. और जॉश लिटिल, I feel if you want to play him, you give him 3 or even 4 overs at the start. Don't play him. देखो ना, 1 for 13 in 2 overs and then none for 30. He's good, he's talented, लेकिन उसका मसला पता है कि फिर आपके 4 bowlers ऐसे आ जाते हैं जो बैट नहीं कर सकते. You bat light. Yeah. Combination नहीं बनेगा. फिर आकिफ को बिठाओ या हसनैन को बिठाओ. बिठाना पड़ेगा आपको. Akif has been a bit underwhelming. Honestly, I thought Akif would be much better than this PSL. But I think इन्हें करना ये चाहिए. If I'm being honest, I'd take out Josh Little and I'd probably bring in Chris Jordan, not David Willey. उसकी reason ये I give the new ball to Akif Javed and Mohammad Hasnain. Yeah.
आकिफ जावेद अगर खिलाना है तो उसको न्यू बॉल दो, मैं बता रहा हूँ. So basically what you're इस saying, phase में नहीं आएगा. basically Saadi, what you're saying is the best bet for Multan against Quetta is to take Little out and bring Chris Jordan in for death overs and Shea Hope out for Ashton Turner. Yeah. I don't understand why this didn't happen in the previous game. No. Honestly, I know शायद जॉश लिटल को थोड़ा ज्यादा गेम टाइम देना चाह रहे हैं, मगर फिर उसको सही तरह इस्तेमाल कर लो. उसको 2 ओवर रख दिया आपने उसकी डेथ में, नहीं समझ आई, और फिर उसने इतनी गंदी बॉलिंग कराई कि मैच वहीं खत्म. खत्म तो किया है ना ब्रो. फिर Yeah. सिक्कू भाई और डैरल मिचेल ने. सिक्कू भाई और डैरल मिचेल ने तो याशियां करा दी. यार सिकंदर रजा क्या फॉर्म में. Unbeaten 40 of 21. इससे पहले 52 of 37, जिसमें आखिरी 7 बॉलों में स्लो डाउन किया, और उससे पहले अनबीटन 50 of 27. सिकंदर रजा बट इज मिस्टर लाहौर राइट नाउ. एक तो मैंने देखा है ना कि फुलर लेंथ डिलीवरी तो कार्डिनल सिन है, और कराई है इन लोगों ने. व्हाई डू दे कीप बॉलिंग फुल टू सिकंदर रजा बट? I don't know. इट मेक्स नो सेंस. एक दफा जिस तरह मुझे समझ नहीं आ रही थी, तुम्हें भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, यासिर खान को ऑफ साइड पे क्यों नहीं टेस्ट करते? Yeah, Yasir Khan is clearly a leg side player, predominantly leg side. I still haven't seen a single boundary he scored on the offside. जिस तरह रिजवान है, who's stronger on the leg side, ऑफ साइड पे उसका वो गेम नहीं मगर है. फिर भी है, कट शॉट है. उधर बॉल करो उस चैनल में. Rizwan can still be punchy on the offside. Yasir Khan तो सिर्फ लेग की तरफ ही घुमाता है. अभी वैसे थोड़ा सा टाइम तो दो ना यार, उसको लेबल ना करो. हाँ, लेकिन but either way, if I am a bowler, I will just bowling be plan simple targeting. है. हाँ, ऑफ स्टंप पे टारगेट करो, ऑफ पे बॉल करो, और फुल ना कराओ, Full तो क्योंकि बिल्कुल. फुल कराई तो वो किसी तरह जगह बनाकर डाउन द ग्राउंड मार देगा. सो आई वांट टू बोल हिम एट अ बैक ऑफ अ लेंथ और गुड लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप कंसिस्टेंटली. टेस्ट मैच लेंथ कराते रहो यासिर खान को, और थोड़ा सा भी स्ट्रेट होए ना, उसने तुम देनी है. और सिमिलरली सिकंदर रजा को क्यों करवा रहे हो? पता नहीं फुल क्यों करा रहे हो यार. उसको 3 फुल बॉलें पड़ी हैं, उसने 3 छक्के मारे हैं. देयर वाज वन स्वाइप ओवर द फाइन लेग फेंस, ठीक है, फ्लिक्सी मारी उसने ऑफ हिज लेग्स. देन बिग स्विंग्स ओवर लॉन्ग ऑन, और सॉरी, बिग स्विंग्स ओवर लॉन्ग ऑफ एंड डाउन द ग्राउंड. बहुत लंबा छक्का दिया था इसने डाउन द ग्राउंड, बल्कि मुझे याद है. और ये तो फुल बॉल्स पे है. बट यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू सिकंदर रजा बट दैट व्हेन दे इवन पुल्ड देयर लेंथ्स बैक, he had shots, bro. He heaved the ball over mid wicket for 6 versus spin, clobbered the ball over extra cover, and then there was an aerial cut as well. बंदा बहुत फॉर्म में है. Again, 21 balls, 2 fours, 4 sixes, unbeaten 40 of 21. He's the David Visa for Lahore this season, honestly. yes, ये उस तरह का सीन चल रहा है, कल्ट स्टेटस मिल रहा है सिकंदर रजा बट को. सिकंदर रजा ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करवाई है Throughout? थ्रू आउट इसको तो बल्कि ओवर कम मिले मेरे हिसाब से. इस वाले में पेट गया था 20 in 2 overs, लेकिन ओवरऑल ही इज बीन रियली रियली गुड. अच्छा, और डैरल मिचेल की जब तक Darryl बात की Mitchell. जाए यार, दिस वाज हिज बेस्ट नॉक इन अ लाहौर शर्ट. Yes, sir. आई नो इसने पहले भी एक अच्छा नॉक खेला, 70 और मारा था, बट दिस लेकिन वाज द this बेस्ट was, वन. हाँ, इट केम इन अ 64 चेस, हाँ. एंड देन इट केम एट अ टाइम आल्सो व्हेन उबैद शाह टुक 2 विकेट्स इन द ओवर, हाँ. जो कि मुझे लग रहा था मुल्तान ले गई है हाँ. वहां से, एटलीस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम. 32 एटलीस्ट बॉल, मैच तो अच्छा हुआ ना. हाँ. 32 ball 50 for Daryl Mitchell, right? Ends up with 64 of 38. Perfect. And whilst I loved the pulls and the cuts, जो कि तो हमें पता ही है कि down the ground pulls and cuts इसकी बहुत on है. Bro, जो best चीज थी ना, those were those ramps. जो रैम्पियां छिक दी है ना, they were 2 ramps. तो मैं एक याद है कि पहले बैट नीचे लाया, फिर इसने हल्का सा ना नीचे से बैट अपना साइड पे किया कि नहीं ये रैम्प को इधर होना चाहिए. और this is the sort of unorthodoxy that is synonymous with T20 cricket now. I feel like those ramps they need to be studied by Pakistan's cricketers, and they need to bring that shot into their arsenal. क्योंकि या तो ये डाउन द ग्राउंड जाएगा या ये रैम्प मारेगा फुलर लेंथ बॉल पे, ठीक है, वरना तो ये कट और पुल मारेगा. तो डैरल मिचेल after a long time has turned it on. Yeah. He hasn't even taken a lot of balls to get going this time, right? 32 ball 50 मारी है इसने. Yeah. शानदार stuff. Like ended up with player of the match. बॉलिंग पता नहीं 4 ओवर क्यों करवा दिया. वो तो फिर शाहीन की गलती है. But there is a sort of love affair between bald cricketers and Lahore Qalandars. ये तो है. फिर पहले बेन डंक भी हमने देखा, फिर लाडी भी था बीच में. दिलबर क्रिस लिन भी खेला. So अब डैरल मिचेल आ गया. इनफैक्ट इन लोगों ने यही देखा होगा, गंजा है ना, प्लैटिनम पिक, दस्ती, सील द डील. नहीं अच्छी पिक थी प्लैटिनम. बहुत अच्छी फर्स्ट पिक जरूरत थी ना. उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक नहीं उतना अच्छा नॉक नहीं था. क्या था ये? 34 of 25 या 34 of 25 ain't great. मसला इनका वही है मोहम्मद नईम वाला. या मोहम्मद नईम का काफी इंसेन मसला है मेरे ख्याल से. हालांकि छक्का अच्छा दिया था नईम ने, और ऑफ साइड पे भी दिया था. हम बार बार कहते हैं कि वो भी लेग साइड प्लेयर है. इट वाज अ गुड 6, बट लाइक यू नो, होपफुली कम्स गुड.
Honestly, लेकिन मसला I है। still feel like Saad's fix was the best fix. You bring Akhlaq in as Yeah. opener. No one's batting order gets disturbed. क्योंकि यही caveat है ना. You don't want to disturb so many people's batting यार position. अब्दुल्ला शफी की बेस्ट पोजीशन फर्स्ट ड्रॉप है Yes. इन T20 क्रिकेट. डैरिल मिचेल की Number 4 है. नंबर 4 है. सैम मिलिंग्स की नंबर 5 है. Yes. और फिर अब सिकंदर रजा की 6 बन ही गई अब तो ऑटोमेटिकली. उसको तो कुछ भी मत बोलो ना इस वक्त. तो नहीं हिलाना ना ये तो यू हैव टू ब्रिंग अखलाक. सिकंदर रजा is having an MVP season for Lahore क्योंकि वो बॉल के साथ भी शानदार जा रहा है. But yeah, if you don't want to take a punt on Naeem, you bring Azib back. Even though that's also a bit dodgy, but then again, यार third seamer का खैर Tom Curran had a good game. He did have a Yeah. good game. So, 24 for 1. So maybe they'll stick with Naeem for now. अब मुझे लगता है यही खिलाएंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे ये लाइन. Yeah, आसिफ अली को भी दोस्ता नीचे बैटिंग नहीं मिली ना अभी. हाँ एक रन लास्ट. Yeah, Tom Curran came in right. Rishad Hussain actually went out. हाँ. और Azib that went out. Yeah. That was surprising. एक और चीज ये भी कर सकते हैं. I know they won't be too keen to play spinners on this Lahore deck, but Momin Qamar को भी खिला सकते नहीं you won't play. आसिफ अफरीदी को अगर 22 रन्स पड़ने और सिकंदर रजा को 20 रन्स पड़ने हैं ना, 4 ओवर्स में 44 for 0 अगर हैं. 42. 42 for 0 अगर स्पिनर्स ने लिए हैं ना, तो फिर I don't think you need to play extra spinners on this pitch. Yes, I'm और overall- with you over there, but then again, having a fourth seamer in the lineup in Azib could help. You've got Shaheen, Tom Curran, Haris Rauf, right? And Azib. Then you've got Daryl Mitchell. नहीं, so आसिफ को अगर लाते हो तो फिर क्या करोगे? sacrifice Asif Afridi on this Lahore deck. I don't think they'll do that. और मतलब कौन है? देखो ना, आपको इतनी बैटिंग आसिफ अफरीदी को निकाल आसिफ के अफरीदी आपको ज्यादा बैटिंग दे रहे हैं. आसिफ अफरीदी को निकाल के मोमिन कमर ले आए. नहीं, मैं कह रहा हूँ आज़ब ही ले आओ फिर. आज़ब Have ले the आओ. fourth seamer क्योंकि यहाँ पे they look at Daryl Mitchell as their fourth seamer, which is bonkers. Which is bonkers. मतलब in no world, like I said, कोई parallel universe में भी Daryl Mitchell should not be bowling more than 2. more than 2 overs. He shouldn't even be bowling 2 overs honestly. एक नहीं, ओवर आप नहीं, buffer over दे लो. ठीक है, अभी वो 2 ओवर तो ठीक और गिरा गया. not only did he bowl 4 overs, which he shouldn't have, वो 18th over करा रहा था यार. मतलब हद है. Ends up with 1 for 47 and 4. हालांकि इसने पहले ओवर में अपने उस्मान खान को निकाला था, जो कि उस्मान खान की गलती थी. गंदा आउट हुआ था उस्मान खान. वैसे यार उस्मान खान भी पता है ठीक है, 2 मैच अच्छे खेले. बस 2 ही मैच. Hasn't been turning up, right? यार ये जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं ना, उस्मान खान को अब क्या जरूरत है कहने की कि आई वांट टू हिट डबल सेंचुरी इन पीएस. Yeah. ठीक है, अपनी गोल्स हैं अपने पास रखो ना, ये फिर ट्रोलिंग लाते हो अपने ऊपर. खैर, why I'm saying कि आजिब को लाओ is just because yeah, this fifth bowling combination of Sikandar Raza Butt and Daryl Mitchell is a bit wonky. Don't you think? है तो सही. So if I am getting in another seamer, and we know seamers are doing well in Lahore, right? Spinners से बेहतर जा रहे हैं. Doesn't that make more sense? ठीक है, fifth bowler वैसे ही compromised है. It's a combination of Sikandar Raza Butt and Daryl Mitchell, जो कि इस मैच में तो नहीं था. इस मैच में तो वो दोनों 6 ओवर करा गए हैं साथ. इस मैच में तो फिफ्थ क्या कहते हैं bowler combination था Sikandar Raza Butt and Asif Afridi, right? Who went for what, 42 as you said? 42. So might as well sacrifice Asif Afridi, get Azib in. और आप ऊपर फिर कोई पेडिग्रीड बंदा खिला लो. नहीं, वैसे ही फेल हो रहा है. अखलाक खिला लो. या अगर इन्होंने ये चेंज इतनी रेडिकल नहीं करनी, ये आसिफ को नहीं अगर खिलाना चाह रहे, फॉर एग्जांपल जस्ट ब्रिंग इन जहादात फॉर आसिफ अफरीदी. ऑलराइट. या हाँ, ये भी तो कर सकते हो. यू कीप नईम देन, अखलाक मत लेकर आओ और जहादात को ले आओ आसिफ अफरीदी के लिए. चौथा अगर पेसर चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो फिर डैरिल मिचेल ओवर करा रहा होगा. यही हो रहा होगा. वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा. यहाँ पे तो उसको आपने 4 ओवर दे दिए ना. ही इज नॉट एन ऑलराउंडर मैन, इज अ पार्ट टाइमर. पार्ट टाइमर एट बेस्ट. बफर ओवर्स के लिए. Yeah, it didn't hurt them in this game. It could hurt them in the future. So you have to look at these things. अच्छा, उसके अलावा लाहौर की बॉलिंग जो थी ना, काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स थे. Yeah. Shaheen and Tom Curran were good. Shaheen was quite good, man. I know he didn't take a wicket, but But he in was his first 2 overs in the power play, Shaheen gave away just 6 runs. So 25 runs उसने concede किए 4 overs में. I take that any day of the week from my pacer. आखिरी 2 ओवरों में उसने अपने 19 जरूर concede किए, but because he's conceded just 6 runs in the power play, it is a net positive performance. None for 25 and 4. Good job. Tom Curran 1 for 24 and 4. Yeah, Tom Curran really impressed me with his variations. Honestly, I'm not high on Tom Curran. I think he is an क्या कहेंगे overrated player. Just like Sam Curran. यार सैम करन एक टाइम पे था रेटेड. अब overrated He नहीं है. just dropped off a cliff. When he's coming at first drop in IPL तो फिर मसला है. Sam Curran was at the summit, ठीक है? हाँ ना. Where अभी- he took all those wickets in the T20 World Cup, and then he got a massive paycheck out of the IPL. बस.
एंड देन वो समिट पे ना वो ही वाज बेसिकली ऑन द प्रेसिपिस, वो गिरे उससे और बस गिरता ही गया, आज तक गिर ही रहा है, So, ये सारे करन ब्रदर्स जो है ना गिरते ही जा रहे हैं। नहीं, बेन करन ने अच्छा खेला अच्छा अभी खेला टेस्ट मैच में, नहीं तो टॉम करन ने भी अच्छा खेला। हाँ टॉम करन ने काफी अच्छा खेला। अब इवन दो ही ड्रॉप्ड अ वेरी पुअर कैच, कामी जी, बल्कि जो कामी जी ने जो स्कोर किए हैं, जितने भी 30 बॉल 50 थी ना कामी जी की, 12 पे आउट थे कामी जी। नो, like if you replay that catching opportunity, it gets caught 9 times out of 10 or 9.5 times out of 10. टॉम करन ने वो ड्रॉप किया, 9.5 टाइम्स कैसे कैच करते हो? मतलब कि आधा 20 में 19 20 में 19 हुआ ना, तो ऐसे बोलो ना, 9.5 आउट ऑफ 10 तो नहीं बनता वो ना। लोगों को समझ आ गई होगी नहीं सारी। आई 9.5 आउट ऑफ 10 क्या होता अच्छा, but either way, I think that dropped catch was the only poor thing for Tom Curran on the day. I was really impressed with his bowling, man. क्या थे numbers? है? 1 for 24 1 for 24, जिसके अंदर यार शे होप को जिसने आउट किया, that was a brilliant delivery. और I like the fact that you know he is someone that Lahore can use with those back of a line deliveries and variations. वही वाली चीज हारिस रऊफ तो पिटा है काफी। हमेशा की तरह 1 हालांकि for 46 हालांकि आया तो आतिश सारस ने यासिर को आउट किया, ठीक है। फर्स्ट ओवर ही बोल्ड व्हिच वाज लाइक द फिफ्थ ओवर ऑफ द गेम, ही गेट्स यासिर off his like third legal delivery, and after that like he's taken down by Rizwan and Kami ji at the death big time. yeah काफी पड़ी हैं दोनों ने 1 for पेला। 46 क्या है? पिछले मैच में भी पड़ी। You need to be smarter than that, man. आपको नजर नहीं आ रहा टॉम करन पहले मैच में समझ गया यहाँ पे करना क्या है। आपकी स्लोअर वन है भी अच्छी, पकड़ी नहीं जाती लोगों समझ से। नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती, मुझे इनकी It should be very easy for Haris Rauf to be performing well on this deck. That's the argument, right? स्टूपिडिटी है ना, अगर आपको अपनी लेंथ समझ नहीं आ रही कि मैंने इस पिच पे क्या बॉलिंग करनी है, तो नहीं समझ आई। जब ये चीजें अगर वो सही कर लो और फिर पड़ जाए ना, तो और फिर एक अलग बात है। Going into the ground, आप आगे से इस तरह की बातें करो कि oh I'll just keep things simple, this is a flat deck, whatever, बैटिंग यहाँ पे runs बहुत पड़ते हैं। यार आपने देखे हैं पिछले 2 मैच? Have you not judged the conditions in Lahore? Do you not know variable bounce is a thing over here? Have you not seen अभी अच्छा नहीं, उसने पहले शायद 2 मैचेस ना देखे हों क्योंकि पहली इनिंग्स में बॉलिंग करा रहा था, बट पॉइंट इज यार ये चीजें तो हम सबको पता है। मार्क निकलस जो भी बात कर रहा था, उसे आई कैंट रिमेंबर कौन बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि यार नॉट दैट, नो वेरिएबल बाउंस, नो नथिंग, एंड ही वाज लाइक नहीं यू सी सर, आई विल जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। कर ली आपने थिंग्स सिंपल, पिट गए आप 46 रन के लिए। यार आप सीनियर बोलर हो। आई मीन अगर 185 आप कंसीड कर रहे हो एज अ टीम और उसमें से 46 आपने खा लिया ना, तो मसला आपका है। और पता है और स्पेशली जब मिचेल 47 का रहा है। दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा यार, आपने चलो पहला पावर प्ले का ओवर अपना अच्छा कराया जो एक ही आपको मिला, ठीक है। मुल्तान और सॉरी हाँ मुल्तान वर व्हाट 45 for 1 नहीं 39 for 1 थे, 39 for 1 थे। तो उसके बाद आपने लाहौर स्कोर was 45 for हाँ लाहौर was 45 for 1 which was 6 more runs than मुल्तान, बट 39 for 1 के बाद आपने 180 जो 185 खाए उसमें हारिस राव का तो कसूर है। हारिस रऊफ और डैरिल मिचेल, It's weird. जो कि शाहीन का कसूर है। You know why it's weird? ये 2 गेम हमने देखी हैं जिसमें लूजिंग साइड ने, जो एक में पेशावर थी, एक में विनिंग साइड, एक में लूजिंग साइड है, बट लाहौर ने क्या गलती की, 39 रन्स खाए पावर प्ले में, उसके बाद 185 कंसीड कर दिए। पेशावर उल्टा 67 रन्स खाए पावर प्ले में, कंसीडेड ओनली 178। सो टू वेरी क्या कहते हैं ऑपोजिट सॉर्ट ऑफ, नहीं ऑपोजिट नहीं, I have lost the word, Sadi. ठीक है, I've lost the मुझे word. लगता है काफी ज्यादा लंबा हो गया शो पे। Yeah. I think that's about it. मतलब लाहौर की हमने चेंजेस बता दी हैं, मुल्तान को कुछ क्विक फिक्स करने हैं, वरना तो वो गए ब्रो। एक चीज थी जो वरुण ने मेंशन की थी, it was a bit on Fakhar Zaman. How much did Fakhar score? 28. It wasn't a good knock because he consumed a lot of deliveries, wasn't it? 28 of 22. Yeah. So Varun ने actually एक बड़ी जबरदस्त चीज हमें point out कराई है। Fakhar Zaman is averaging 21 versus pace this season at 127. 127 का स्ट्राइक रेट, तो इतना खास नहीं है पेस के खिलाफ। Whereas if you look at spin, he's averaging 110 204 at a strike rate of 204, which I think tells you a lot about Fakhar Zaman and how if you were an opposition team, you shouldn't be bowling any spin to him. No. At least in the power play, you shouldn't be. उसके बाद तो आ ही जाएंगे। तो that's something to look out for. पहला बहुत बुरा मैच था आई थिंक फखर, क्योंकि बॉलें पी हैं इसने। वो 45 for 1 भी कम ही था ब्रो पावर प्ले में, कम ही है। या नॉट गुड इनफ। 6 रन ज्यादा थे चलो मुल्तान से, बट स्टिल नॉट पर्टिकुलरली इंप्रेसिव। बट या दैट प्रीटी मच रैप्स इट अप। कल लाइव आएंगे हम मुल्तान वर्सेस क्वेटा के मैच में, सो जॉइन अस, मजा आएगा उसमें। Yes, काफी मजा आएगा। आई होप कि कोई क्लोज मैच हो जाए, एंड आई वांट मुल्तान टू विन टुमारो, क्योंकि फिर टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। Yeah, That's about it, right? हाँ we'll be live with you and यार लाहौर वालों आओ जरा मैच वगैरह देखने। एंड I don't think कल आएंगे। या कल नहीं आएंगे। वीकडे मुल्तान क्वेटा
who's going to turn True, up. वाकई. We But will anyway, be. Yeah, live Right. हमारे साथ बैठ With जाना, you. उसके बाद आपको और इस तरह के shows मिलते रहेंगे. But yeah, have a good time. Good one. Whatever. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारी बूथिया पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon या इजी पैसा. 0319360255 इज द नंबर. उसके अलावा चिल मारो. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. Enjoy Zia Maro. अल्लाह हाफिज़. Boy.